احسان اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ اچھا، وہ انٹروڈکشن یہ خود ہی پیش کریں گے باقی سارے، میں ابھی فارمیٹ بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اوکے جی۔ ڈولی بیٹا بزی ہو بھی تھوڑی دیر تک۔ ناظرین، نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ خواتین کی اکثریت ہے، اور اسپیشل آج جو ہے پاکستان میں مسیحی خواتین کا کردار، جدوجہد اور مسائل پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے یہ تمام خواتین ایسی جو اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے سلیم اقبال صاحب، جو اکثر آپ ان کی رپورٹس دیکھتے ہو، جہاں بھی ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں، جان جوکھوں پہ ڈال کے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو جو پینل میں شامل ہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ تو دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فون نمبر بھی آپ کا بتاتا ہوں تاکہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اگر فیس بک پہ سیمسن جوید کی ID پہ جائیں، جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو میں اس سے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں فادر مانویل نذیر مانی صاحب کو آج کی ہوسٹنگ کا جو ہے وہ پلیز آپ اس کا سٹارٹ کیجئے گا۔ جی فادر مانی۔ سیمسن جوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں ناظرین آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آج کی شام جو ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں مسیحی خواتین کا کردار ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ مقصد بانو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ موضوع جو ہے ابھی صرف مسیحی خواتین تک نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہے، اور ان کے جدوجہد اور مسائل تو پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں خواتین جو ہے ان کا کردار، چاہے وہ مسیحی ہوں، مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، تو اس کو اس طرح ہم لیں گے۔ فادر جی آپ مقصہ بانو کو مبارکباد بھی دیجیے کہ وہ کل جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان پریس کلب کی منتخب ہوئی ہیں۔ تو ایک آپ بھی جانتے ہو کہ اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے، جہاں ہم تمام مسلم اور کرسچن کوئی امتیاز نہیں، ہم بلا امتیاز اس میں کام کرتے ہیں سب۔ تو اب میں بھی مبارکباد دیتا ہوں، فادر جی آپ بھی مبارکباد دے دیجیے گا۔ جی مقصد بانو، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو جو آپ کو نیا رول ملا ہے، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، جو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک ہے، یہ ایک ایسا چینل ہے جو کہ بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب کام کرتا ہے۔ جو ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے ٹو ہائی لائٹ سوشل، ریلیجس اور پولیٹیکل جو انجسٹسز ہیں معاشرے میں، ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کا جو حل ہے وہ جو ان کو پیش کرنا۔ اس کے بعد جو انسانی اقدار کی بحالی جو ہے ان کی پروموشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور یوتھ اور ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارا منشور ہے، اور جو ادبی لٹریری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ چینل جو ہے نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک جو ہے یہ پروموٹ کرتا ہے۔ تو آج جو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے اور وقت کی عین ضرورت کے مطابق ہے، کہ جس میں ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کا کیا کردار ہے پاکستانی معاشرے میں، ان کو کون سے مسائل درکار ہیں،
ख़वातीन जो है वो किस तरह जद्दोजहद करके मुआशरे में मुकाम बनाती हैं। हम सब जानते हैं कि इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। कोई भी ज़ी शऊर किसी भी मुआशरे में ख़वातीन के किरदार को इग्नोर नहीं कर सकता, ख़वातीन की मौजूदगी को, मुआशरे में उनकी हैसियत को और ख़ास तौर पे ख़ानदानों में उनके रोल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मशहूर ज़माना सिपहसालार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, उनका एक तारीखी जुमला है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतर कौम दूँगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ख़वातीन जो है वो चाहे माँ की सूरत में हों या बहन की सूरत में हों, बीवी की शक्ल में हों, वो किसी भी रूप में हों, उनका हर रूप ही निराला है और उनके वजूद से कायनात जो है उसमें रंग हैं। तो आज जो हमारे साथ जो शामिल हैं मुकस्सा बानो हैं, वो मैनचेस्टर से हैं, सिस्टर सुबीना रिफत है, शाजिया नवीद जो हैं वो फिनलैंड से हैं, कैथरीन सपना है और समाजी कारकुन हैं सलीम इकबाल। हम आप सबको आज की इस गुफ्तगू में इस पैनल में खुश आमदीद कहते हैं और सैमसन जावेद साहब हैं हमारे साथ जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ आएँ और हम अपनी डिस्कशन को शुरू करें, मैं चाहूँगा कि अगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो काइंडली अपना मुख्तसर तारुफ थोड़ा सा खुद पेश करें कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, किस शोबे से मुंसलिक है और आपका काम जो है वो मेनली वो क्या है। तो ये हमारे लिए आसानी होगी। तो बारी-बारी मैं कहूँगा तो उसके बाद फिर आप जो है अपना बाद में जो क्वेश्चन जो है वो होंगे। मैं सबसे पहले सिस्टर सबीना की तरफ बढ़ूँगा। सिस्टर जी, जो हमारे नाज़रीन हैं हमें लाइव सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास होगी। ये बहुत अहम मौजू है, तो काइंडली आप थोड़ा-सा अपनी एक्टिविटी जो है उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी, बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब और रेवरेंड फादर मानी साहिब कि आपने मुझे भी अपनी इस नहायत अहम गुफ्तगू में शरीक होने के लिए इनवाइट किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सबीना रिफत है और इन दिनों में मैं जो है वो बेसिकली मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गर्ल्स को, ख़वातीन को, बच्चियों को और ये जो है यंग गर्ल्स उनको तालीम देते हुए गुजारा है। तो बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ और आजकल जो है वो मैं ख़वातीन के साथ फुल टाइम काम कर रही हूँ और मैं URI एक इदारा है, इंटरफेथ का इदारा, जिसका बेसिक मकसद है कि पूरी दुनिया में इंटरफेथ हारमनी के ज़रिए, क्योंकि जाहिर है कि हम सब के मज़ाहिब जो हैं वो फ़र्क हैं, तो URI का जो मेन काम है वो ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलजुल कर हारमनी और पीस के लिए काम करना। तो आजकल मैं फुल टाइम उनके साथ काम कर रही हूँ। ये ग्लोबल एक तंजीम है और हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो लाहौर में है। तो मैं इनके वीमेन विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं बेसिकली जो आजकल फुल टाइम ख़वातीन के साथ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, जिसमें बेसिक मेरा काम है ख़वातीन को आगाही देना कि वो अमन की सफ़ीर बने और वो हर सतह पर मनी हम आहंगी और अमन को फ़रोग दें और उसके लिए हम हर मज़हब की खातून के साथ, हर मज़हब की ख़वातीन के साथ मिलकर काम करते हैं। तो चूँकि पाकिस्तान में जिस तरह के इकनॉमिक स्टेटस है और ख़वातीन के जिस तरह के हालात हैं गुर्बत में, उसके वजह से मैं हर साल एक प्रोग्राम जो है वो उन ख़वातीन के साथ करती हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको मौका नहीं मिला कि वो तालीम हासिल कर सकें। तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हूँ, उनको हम सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये प्रोग्राम ज़्यादातर मैं भट्टों पे या स्लम्स एरिया में करती हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती ताकि दूसरों को भी टाइम मिले। तो मैं आपको अपने मैगजीन का तारुफ कराती हूँ। ये हमारा इंटरफेथ मैगजीन है, उमंग। तो इसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और मैं इसकी एडिटर भी हूँ। तो इसमें जो भी हम काम करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, uri.org।
उस पे इसमें सारी एक्टिविटीज आप देख सकेंगे। तो मैं राइटर भी हूँ, एक तो उमंग जो है इसकी मैं एडिटर हूँ, एक रसाला छपता है कोयटा से संगत, तो मैं इसके एडिटोरियल बोर्ड में भी थी और मैं इसकी परमानेंट राइटर भी हूँ। और हमायत इस्लाम जो है ये पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले का इदारा है, तो इसमें भी मैं मुस्तकिल एक लिखती हूँ। बाकी मैं राइटर हूँ और मेरी किताबें कुछ छप चुकी हैं, ज्यादातर अभी तक मैंने शायरी में मेरी किताबें छपी हैं और उनका नाम है लोरी दिल दुखाती है, फाख्ता को आना है, सूली उत्ते टंगी रात। ये जो किताब है ये मैंने शहीद बिशप जॉन जोसेफ के नाम की है, उनकी स्ट्रगल और आज़ादी के लिए उनकी जदोजहद के नाम। और एक मेरी किताब है ख्वाब सोने नहीं देते। तो अब इस साल मुझे उम्मीद है कि मेरी गजलों की किताब आएगी, समुंदर डूब जाएगा, और मेरी अफसानों की किताब आएगी, सुबह सुहानी रहने दो। लेकिन मेरा जो ख्वाब है वो ये है कि मेरे वतन के बच्चे जो हैं, मैं उनके हाथ में खंजर की बजाय कलम देखना चाहती हूँ और औरतों को इतना मजबूत देखना चाहती हूँ कि वो अपनी आने वाली जनरेशन्स की तरबियत कर सके। जी सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में अपना मिशन और मकसद और जो आप काम कर रही हैं उसके बारे में अपना तारुफ पेश किया। मैं बढ़ना चाहूंगा मुकस्सब बानो की तरफ। मुकस्सब बानो, आप मुख्तसर काइंडली जरा अपना तारुफ पेश करें और उसके बाद फिर हम अपने मौजूद की तरफ आएंगे। मैं ना मुकस्सब बानो साहबा प्लीज अगर आप इंतजार करें, क्योंकि सलीम इकबाल साहब अगर वो दरमियान में निकल गए तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि उनके फादर जी टाइम कम है। हम उनके तारफ के साथ साथ उनको अपनी रिपोर्ट भी इजाजत देते हैं, अच्छा, क्योंकि उन्होंने चलिए ऐसा करते हैं। जी जल्दी छोड़ देना उन्होंने जी फिर हमें। जी 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 सलीम इकबाल साहब, हाँ जी, चलें हम थोड़ा सा उसका पैटर्न बदल लेते हैं क्योंकि सलीम इकबाल साहब जो है उन्होंने जाना है। सलीम इकबाल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से। आज की जो लाइव ट्रांसमिशन है और जो मौजू है कि पाकिस्तान में जो खवातीन है उनका किरदार और जद्दोजहद और मसाइल, आप जो हैं बहुत ज्यादा आपकी गिरफ्त है, आप को हम देखते हैं, आप बहुत सरगर्म कारकुन हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप एक तो थोड़ा सा अपना तारुफ बयान करें आपके काम का, ताकि जो नहीं भी आपको जानते वो भी जान सकें। और दूसरा फिर जो आपने रिपोर्ट पेश करनी है मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में, अगर वो आप बयान कर लें, क्योंकि बताया गया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं कि आप हमारे साथ रहेंगे। तो हम वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं उस टाइम को। सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो जस्ट कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आपकी आवाज नहीं आ रही। सलीम इकबाल साहब जी। जी जी सर, एज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी कौम को सर्व कर सकूँ। और मैं फजल टीवी के साथ 2 प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जिसमें प्राइड ऑफ द नेशन और स्पेशल रिपोर्ट है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आएंगे कि पाकिस्तान में जबरी तब्दीली, मजहब, जिनसी ज्यादती और फोर्स कन्वर्जन के जो वाकयात हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें ज्यादातर टारगेट किया जाता है कमसिन बच्चियों को, 13 साल 14 साल तक की जो बच्ची हैं इनको टारगेट किया जाता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस उम्र में बच्चियों को वर्गलाना और ट्रैप करना बहुत ही आसान होता है। और दूसरे नंबर पर ये इन बच्चियों का तल्लुक इंतहाई गरीब घरानों से। इसकी वजह ये है कि गरीब घरानों की बच्चियों को दबा लेना, वॉइसलेस लोग हैं, तो इस वजह से इनको टारगेट किया जाता है। अभी हालिया में आपको बताऊंगा, मारिया जलाल का जो केस हुआ, इंतहाई गरीब घर से उसका तल्लुक था, लेकिन गैंग रेप करने के बाद अभी चंद रोज कबल जो है, थोड़े दिन हुए हैं, उनकी सुलह हो गई है 55 लाख में। तो इस किस्म के जो वाकयात हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे कमसिन बच्चियां लाइसेंस नहीं बना सकती या वो आईडी कार्ड नहीं उनका बन सकता, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट जो मौलाना साहब देना चाहते हैं। सेमिनार हैं, इन ये वाकयात को कंट्रोल करने का सबब बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का ये अच्छा इकदाम है कि ऐसे इश्यूज को रेज किया जाए और ऐसे इश्यूज पे बात की जाए।
اور کافی لڑکیاں جو ہم نے ریکور کی ہیں ہائی کورٹ کے ذریعے, اور ان کی عمریں جو وہی 13 سال اور 14 سال تک کی ہوتی ہیں. جی یہ بھی جی بتاتے جائیں کہ جو آپ کو بہت دفعہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور تھریٹ بھی بڑی دفعہ آپ ہوئے ہیں, تو اس کے لیے پھر اوپر والے پہ چھوڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی پروٹیکشن وغیرہ بھی آپ کو کوئی مہیا ہے؟ جی نہیں سر, ایز سچ بس خدا پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی اسی پہ چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو موت ہے یہ ہماری سب سے بڑی محافظ ہے, اس نے وقت سے پہلے مرنے نہیں دینا. لیکن جو ہمارے وسائل ہیں ان وسائل میں رہ کے ہم اپنی حفاظت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے تھریٹس تو ہوتے ہیں, جب یہ ایسے قوموں میں آپ آتے ہیں تو یہ منظم گروہ ہیں, آرگنائزڈ لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں. جیسے کراچی میں وہ میاں مٹھو صاحب ہیں, وہ ہندو لڑکیوں کو انہوں نے کم سن بچیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ مطلب کہ جبری تبدیلی مذہب کے بعد ان کو ان کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں, پھر جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا یہ میں بھی پوچھوں گا کہ یہ جو شادی شدہ بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ 4 بچے ہیں ان کے, یا اس طرح سے ان کی وجوہات مین وجوہات کا کیا کیسے ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہے؟ سر مین وجہ جو آئی ہے ایک تو مطلب کہ غربت کا بہت زیادہ عنصر ہے, کہ غربت کی وجہ سے یہ زیادہ معاملات میں سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی اسلام سے متاثر ہو کر نہیں, بلکہ غربت, افلاس اور جنسی خواہشات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایسے واقعات جو ہیں رونما ہوتے ہیں. جی فادر جی کچھ. جی سلیم اقبال صاحب, آپ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں جتنی دیر بھی آپ کے پاس وقت ہے. تو ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنی کنورسیشن کو. بہت شکریہ سلیم صاحب. مقصبانو کائنڈلی ایک تو مختصر اپنا تعارف بیان کریں ناظرین کے لیے جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں آن لائن, تو ساتھ پھر بعد میں کویسچن آنسر بعد میں ہوں گے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ, میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جیسا کہ آپ نے میرا تعارف کروایا کہ میں ابھی نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں پریس کلب آف پاکستان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنا پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو میں نے خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان میں 98 آنورس 2013 تک کام کیا, اور میرے لیے قابل فخر بھی ہے کہ نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی کی میں پنجاب کی کوآرڈینیٹر بھی رہی, اور مسیح برادری کے لیے جو میرا وہاں پہ کام میں نے کیا اور ان کے رائٹس کے لیے جو میں نے آواز بلند کی, اس کے لیے مجھے نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی گولڈ میڈل بھی مل چکا ہوا ہے. اور بہت اچھا ایک آپ نے عنوان سلیکٹ کیا ہے کہ جو ایشوز ہیں جو ورکنگ وومن کے, جو ہماری مزدور عورتیں ہیں پاکستان میں اور جو جن حالات و واقعات سے گزرتی ہیں, ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ایشوز جو تھے وہ ورلڈ وائڈ بھی ہیں, لیکن ہم چونکہ پاکستان کی جو مسیح برادری اور جو ہماری بہنیں ہیں, مسیح بہنیں ہیں, جو مزدور بہنیں ہیں, ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسپیشلی چونکہ میں بھٹا مزدور خواتین اور بچوں کی رائٹس کے لیے بھی, لیبر کی بھی میں جہلم میں چائلڈ لیبر آبزرور رہی ہوں, تو اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھٹا مزدور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, جس میں اکثریت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے مسیح بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ جہاں پہ سب سے زیادہ تو وہاں پہ جب دیکھا جائے مسیح بہن بھائیوں کے جو ایشوز ہیں وہ ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن ہے, ان کی تعلیم کی طرف اتنا ان کو فروغ نہیں دیا جاتا آپ کی برادری میں. وہی کیونکہ غربت کی جو لکیر ہے وہ اس سے نیچے ہمارے وہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور لیگل رائٹس کا بھی ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا. تو میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے مسیح بہن بھائیوں سے کہوں گی کہ وہ اس چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں, ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو. اور الحمدللہ میں الفلاس کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہوں, وہاں پہ بھی جو میرا مین ٹارگٹ تھا جہاں پہ میں بچے اور بچیوں کا ایجوکیشن کی طرف لاتی تھی اور ان کو فنڈنگ پرووائڈ کرواتی تھی, وہ بھی میرے مسیح بچے بچیاں تھے جو ہمارے ڈسٹرکٹ جہلم سے اور دیگر پاکستان میں تھے. تو چونکہ میں فوکس ایسے لوگوں کو کرتی تھی جہاں پہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ طبقہ جو ہے وہ معاشرے میں دبا ہوا ہے.
تو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ سب سے کہوں گی کہ ایجوکیشن کی طرف اپنے بچے اور بچیوں کو لے کر آئیں تاکہ ان کو اویئرنیس ملے، وہ اپنے رائٹس کو سمجھ سکیں. مزید میں پھر آگے بات کرتی ہوں. جی 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 مقدسہ بانو بہت شکریہ، کیونکہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا تعارف سن کے کہ آپ بلا رنگ و نسل اور مذہب جو انسانی جو اقدار ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں. وی آر سو ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر ود اس آن لائن. کیتھرین سپنا پہلے تو کائنڈلی اپنا مائک جو ہے وہ کھولیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہیں گے کہ جو ناظرین ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں اور ہمارا یہ جو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بہت اہم ہے اور ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے جو خواتین ہیں اور سلیم اقبال بھی جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کیتھرین ایک تو مختصر تعارف جو ہے وہ آپ پہلے بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں آج کل اور کس ادارے سے، یا تھوڑا سا پہلے بھی جو آپ کام کر رہی تھیں اس کے حوالے سے، اور پھر بعد میں ہم جو سوالات ہیں ان کا سلسلہ بعد میں شروع کریں گے. جی جی تھینک یو فادر جی. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سیمسن جاوید بھائی کی کہ جنہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی، اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پر مجھے ویلکم کیا، اور اپنے ساری بہنیں جو پینلسٹ ہیں ان کی بھی تھینک فل، اور میں ان کو ویلکم بھی کہتی ہوں اس پروگرام میں. تو میں ایک چھوٹی سی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں جو کہ 20 ایئرس سے اس شعبہ سے منسلک ہوں. پرسیکیوٹیڈ کرسچنس کے لیے کام کر رہی ہوں. میں اپنا تھوڑا سا تعارف آپ نے بولا پیچھے کا بتاؤں تو میں ایک چھوٹے سے فیملی سے ہوں. میرے فادر تھے وہ ایک چھوٹے سے کیٹیکسٹ تھے کیتھولک چرچ میں. تو میں بہت بڑے خاندان سے نہیں ہوں، بہت رچ فیملی سے نہیں ہوں، تو بڑی جدوجہد کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میرا سب سے پہلی جو جاب تھی ہیومن رائٹس ادارے کے ساتھ وہ کلاس تھا سینٹر فار لیگل ایڈ اسسٹنس اینڈ سیٹلمنٹ. تو وہاں سے میں نے اپنے اس کام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جو تھا وہ 2015 میں میں کو فاؤنڈر ہوں کرسچنز ٹرو اسپرٹ کی. ابھی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوں CTS کے ساتھ، جو کہ کرسچن ٹرو اسپرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے اور ٹرولی بیسڈ آن کرسچن پرنسپلس، لیکن ہم جنرل ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے جو مین ہمارا مقصد ہے کام کرنے کا وہ ہے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا. تو جتنا بھی وومن اپریشن ہے اور وومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں. CTS کے پلیٹ فارم سے ہم 4 ایگزیبیشنز کر چکے ہیں جرمنی میں، بہت بڑے ایگزیبیشنز کر چکے ہیں کیتھولک چرچ کے ساتھ مل کے، پروٹسٹنٹ چرچ کے ساتھ مل کے، اور فری ایونجلیکل چرچ کے ساتھ مل کے. تو وہاں پہ جو ہمارا ان ایگزیبیشنز کا مقصد تھا کرسچنز کے لیے اور جو مائنورٹی خواتین ہیں ان کے رائٹس کی آواز بلند کرنا، ان کے جو وائلیشن ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا، ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. تو ہمارے اس ایگزیبیشن کا نام جو تھا وہ تھا کہ وائی دا ورلڈ از سائلنٹ اوور کرسچن پرسیکیوشن ان پاکستان. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں اور EU پارلیمنٹ میں بھی میں ویمن رائٹس پہ بات کر چکی ہوں، اور گاہے بگاہے جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں پہ ہم ویمن اپریشن جو ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ابھی جو ہے ہمارا جو فوکس ہے، کیونکہ کلاس کے ساتھ بھی میں کام کر رہی تھی پرسیکیوٹیڈ کرسچن پر، جہاں پہ فری لیگل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور لیکن وہاں پہ چونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور آپ فریلی کام کرنا چاہتے ہیں. جو سب سے زیادہ ہم نے کرسچنز ٹرو اسپرٹ کو فارمولیٹ کیا وہ وجہ تھی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو اپ گریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکس کہاں پہ ہیں. تو ان لیکس کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ایک نمبر، جو بڑا کمیونٹی کا نمبر ہے، وہ برک لنک فیکٹریز میں کام کر رہا ہے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہاں پر ان کے لیے کوئی سورسز نہیں ہوتے، نہ ایجوکیشن، نہ ہیلتھ، نہ فوڈ، کچھ بھی کوئی سورسز بچوں کے لیے نہیں ہے. تو جب وہ اس طرح کے ماحول میں گرو کرتے ہیں تو وہ ان ایجوکیٹڈ، تو الٹریسی کی وجہ سے جو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بلاسفیمی وکٹم بھی بنتے ہیں، پھر وہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ وہ ابڈکٹ بھی ہوتی ہیں، ریپ بھی ہوتی ہیں، اور ڈفرنٹ طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں.
तो हम लोग CTS के प्लेटफॉर्म से इन लड़कियों को, इन खवातीन को फ्री लीगल एड भी दे रहे हैं, और फिर हमने भट्टों पे ही स्कूल्स बनाए हैं जहाँ पर हम उनको एजुकेशन का भी सिस्टम उनके लिए कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे 5 स्कूल हैं। एक हमारा गुजरांवाला में स्कूल है जो कि हाई स्कूल है, मैट्रिक लेवल तक है, तो वहां पर भी हमारी क्रिश्चियन बच्चियां जो हैं वो हमारा फोकस है। इसके अलावा हमने कसूर से 15 बच्चों को जब अभी तो उनके एनुअल एग्जाम्स भी हो गए, लास्ट ईयर हमने उनको यहाँ पर सेंट जोसेफ स्कूल में जो तार घर है हम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का, वहां पर हमने एडमिशन करवाया था बोर्डिंग स्कूल में, ताकि बच्चों का जो एक फैक्ट है कि जी फैमिलीज को कभी वो कहीं काम करती हैं, कभी कहीं करती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो हमने बच्चों को उठा के बोर्डिंग स्कूल में डाला ताकि उनके माँ बाप जहाँ मर्जी काम करें, उनकी एजुकेशन ना रुके। तो इस तरह से, इसी तरह से इस साल में भी हमारा प्रोग्राम है कि कुछ बच्चों को हम बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देंगे। तो इसके अलावा हम लोग बच्चों की लड़कियों की जो हमारा फोकस है यूथ, उनको हम स्किल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इस साल में हम बना रहे हैं, जहाँ पर मल्टीपल जो ट्रेनिंग्स है वहाँ पे हम करवाएंगे। और सबसे ज्यादा हमारा फोकस है ड्राइविंग का। बच्चियों को हम, लड़कियों को, हमारा फोकस ज्यादा लड़कियां हैं कि उनको हम ड्राइविंग स्कूल करवाना चाहते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें। और इसके साथ साथ ब्लास्फेमी विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको हम रेस्क्यू करते हैं और उनको फिर फ्री लीगल एड देते हैं। और हमारा प्रोटेक्शन हाउस है, हमने शेल्टर बनाया हुआ है जहाँ पर हम लड़कियों को भी पनाह देते हैं। 2 हाउसेज हैं हमारे जहाँ पर हम इंडिविजुअल लड़कियों को रखते हैं, और एक घर जो है वो फैमिलीज के लिए है जहाँ पर फैमिलीज रह सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग उनके जो लड़कियां फिर ट्रॉमा में होती हैं, उनकी ट्रॉमा काउंसलिंग भी करते हैं, उनको हम मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, और जो केसेस रेफर करने वाले होते हैं हॉस्पिटल्स में, जिनको स्पेशल किस्म की साइकेट्रिस्ट चाहिए होती हैं, फिर हम उन केसेस को रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल्स। तो ये हमारा एक छोटा सा काम है, छोटी सी खिदमत है। तो इसके बाद जब कोई क्वेश्चन होगा तो आई कैन शेयर मोर। जी 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 कैथरीन, बहुत शुक्रिया। आप बड़े वादे अंदाज से और मुख्तसर आपने अपना काम जो है उसके बारे में बताया। जो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है सोशल मीडिया पे, हम आपको बताते चलें कि आज की जो शाम है, ये जो डिस्कशन है, जो कन्वर्सेशन है, ये न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से है, और हम जो मौजू है उसमें पाकिस्तान में खवातीन का किरदार, जदोजहद और मसाइल। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सिस्टर सबीना है, गजाला शफीक साहबा है, मुकस्सा बानो है, शाजिया नवीद फिनलैंड से हैं, और कैथरीन सपना जो अभी अपना तारुफ पेश कर रही थी। तो अभी मैं शाजिया नवीद की तरफ बढ़ूंगा। इस शाजिया नवीद है? यस जी जी शाजिया नवीद, एक तो काइंडली अपना मुख्तसर तारुफ जो है वो बयान करें, और फिर बाद में सवालों जो आपका सिलसिला जो है बाद में हो। ओके जी, मेरा नाम शाजिया नवीद है और मैं फिनलैंड में हूँ, और मैं राइट नाउ जो मैं काम कर रही हूँ, और इस वक्त मैं स्टडी कर रही हूँ सोशल सर्विसेज की हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से। और पाकिस्तान में 2005 में हमने एक स्लोगन के नीचे काम करना स्टार्ट किया, वीमेन एम्बेसडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, खवातीन तब्दीली की सफीर। और इसमें हमने स्पेशली उन लेडीज़ के लिए काम करना शुरू किया और यंग विमेंस के लिए काम करना शुरू किया जो कि प्रोस्टिट्यूशंस जो हैं वो करती हैं और अपने ज़रूरियात को पूरा करती हैं। उनकी जो है वो हमने क्या किया कि उनको एजुकेट करना शुरू किया, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स जो है हमने मुनक्कद करना शुरू किए, और ताकि हम उनको जो है वो टीच कर सकें, क्योंकि एजुकेशन जो है हम समझते हैं कि ये ज़्यादा हमारे लिए जो है वो एक बेहतरीन जो काम है जिसके ज़रिए हम लोगों को बहुत सी बुराइयों से जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमने ज़्यादा एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, और अभी राइट नाउ जो पाकिस्तान में मेरे साथ कुछ बहनें काम कर रही हैं, और वो जो है वो काम कर रही हैं, और फिर हम यहाँ पे वहाँ पे लड़कियों को जो है वो स्कूल जो है वो दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियाँ जा रही हैं, उनको हम जो है वो जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फी की वजह से पीछे ना रह जाएं, और हम उनको जो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए जो है वो
व्यक्ति का बायस बने, ना कि जो है वो अंधेरों में या तारीकियों में जो है वो जिंदगी गुजार कर अपने फैमिली को डेवलप करें। तो ये हमारा काम है, बाकी हम मजीद सवालात जो है वो जी 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 शाजिया नवीद, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुख्तसरन आपने बयान किया कि आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। गजाला शफीक साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, काइंडली माइक खोलें। और हमें पता है कि आप पहले भी हमारी दावत पे हमेशा आती हैं। पहले एक प्रोग्राम हमने किया था खवातीन के हवाले से, वो था कलाम मुकद्दस में, बाइबल में खवातीन का किरदार, और उस वक्त भी आप हमारे साथ थी। एक तो काइंडली अपना मुख्तसर तारीफ पेश करें और फिर सवाल जवाब जो है वो बाद में आप करें। थैंक यू वेरी मच। सबको यसु मसीह का नाम में मेरा सलाम पहुंचे। पास्टर गजाला शफीक कराची से चर्च से ताल्लुक है और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, और ख़ास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट औरत मार्च जो कि पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के लिए औरतें बाहर निकली हैं। तो उसका जो कराची में, सिंध में हम लोग जो करते हैं, उसका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसका मैं एक हिस्सा हूँ चर्च में। और खुद एक चर्च बनाया बैतुल मोमिनीन के नाम से। और इसके अलावा मैं शुक्र करती हूँ पाकिस्तान में, बल्कि शायद मैं गलत नहीं तो दुनिया में मैं वाहिद वो डिबेटर हूँ जो मुसलमान उलमा के साथ डिबेट्स की हैं, और मुझे अवार्ड भी मुस्लिम मसीही मकालमा की तरफ से अवार्ड भी दिया गया इस बात के लिए, जुर्रत और दिलेरी के लिए। अपोलॉजिस्ट हूँ, बाइबल टीचर हूँ और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। ये मुख्तलिफ जगहों पे खुद सेल्फ सपोर्ट मिनिस्ट्री है मेरी। सेल्फ सपोर्ट ये काम है क्योंकि चर्च की बहुत सी जगहों पे बहुत सी रिजर्वेशंस होती हैं। जैसे मैंने चर्च में 5 खवातीन को ऑर्डेन किया है एज अ पास्टर्स, तो उधर भी मुश्किलात का सामना कि खातून तो पास्टर नहीं हो सकती। फिर जब मुसलमान उलमा से गुफ्तगू करनी, और औरत मार्च में जब भरपूर तरीके से हमने औरत मार्च का हिस्सा बने और क्रिश्चियन खवातीन को सामने लाई, और मैंने ये शुरू किया पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इसका आगाज करने वाली मैं ही थी। सबसे पहले हमने जब इराक पर हमला हुआ था या कुवैत पर, उस वक्त हमारी बेटी जिमरा जो सबसे छोटी बेटी है वो 20 इयर्स की, उस वक्त तो 4 इयर्स की थी। तो सलीब उठाकर हम लोग ने 7-8 बड़ी बड़ी क्रॉस बनाई जिस पे लिखा कि हम जंग से नफरत करते हैं और हम अमन के दाई हैं और दुनिया में अमन चाहते हैं। तो वो मेरी बेटी छोटी जिमरा 4 साल की थी और वो बड़ी क्रॉस उठाकर पैदल गई थी प्रेस क्लब तक हमारे साथ। तो सारे बड़े बड़े अखबारों ने उसकी तस्वीर दी थी कि ये क्रिश्चियन बच्ची है, ये भी अमन के लिए बाहर निकली है। फिर शराब के लिए जब कैंपेन चली, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा आप में से अक्सर जानते हैं मेरा ताल्लुक मेजॉरिटी ग्रुप पीपल से है, तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा धब्बा था, दाग था जी। बाइबल में जो है शराब हलाल है, जायज है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी क्रॉस उठाकर उसके ऊपर लिखा कि बाइबल मुकद्दस में शराब हराम है। कैंपेन इस पे एक पूरी चलाई थी कराची में, जिसकी वजह से फिर शराब आप पिए जिससे पीनी है, मेरा कहना ये है, लेकिन मजहब के नाम पर शराब को प्रमोट ना किया जाए। तो एक फिर कैंपेन चली भरपूर तरीके से और अब कोर्ट तक बातें गई और पता चला जी बाइबल मुकद्दस में शराब जो है हराम है। हर किसी ने बात करना शुरू की। फिर मैंने ये भी ट्रेंड डाला कि 1 मई पे भी औरतें बाहर निकले। 23 मार्च पे क्रिसमस पे हम लोग चौराहों में खड़े होकर ईद क़यामतुल मसीह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह के तरीके से जो ईस्टर पे ईद क़यामतुल मसीह और क्रिसमस पे वलादत मसीह का हम पोस्टर्स लगाकर चौराहों पे खड़े होकर यानी क्रिश्चियनिटी को, वो जो डर और खौफ लोगों के अंदर था, उसको चौराहों पे लाकर, मैं खुद हमेशा लंबी क्रॉस पहनती हूँ कानों में,
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ گلے میں پہنتے ہو تو وہ چھپ جاتی, تو میں کان میں پہنتی ہوں کہ تاکہ کیونکہ میرا روز کورٹ میں جانا ہوتا ہے, پولیس اسٹیشن جانا ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو پتا چلے دور سے کہ یہ کرسچن خاتون کھڑی ہے. تو لوگوں کو ایک جرات کہ اپنے فیتھ کو آپ نے پبلکلی پروکلیم کرنا ہے. تو شکر ہے بہت سی یوتھ کو ٹرین کر رہی ہیں. بائبل کالج ہے جس میں 3 جگہوں پر ہم بائبل ایز اے بائبل ٹیچر بھی میں کام کر رہی ہوں. اور آج کل جیسا آپ کو پتا کرونا وائرس کا یہ بہت بڑا بحران ہے ساری دنیا میں ہی, اور پاکستان میں زیادہ اس طرح کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے اور ریلیجیس ہیٹرڈ ہے, ڈسکریمنیشن ہے, اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں تک جو چیزیں نہیں پہنچ رہی. تو اس میں بھی میں نے نکل کر فرنٹ لیول پہ میں نے میرے ہسبینڈ نے کام شروع کیا, فوڈ ڈرائیو میں حصہ لیا مسلمانوں کے ساتھ مل کر. میری دوستیں ساری فیمنسٹ گروپ کی مسلمان دوستیں ہیں, ان سے مل کر ہم نے کرسچن لوگوں کے لیے فوڈ کا سارا ارینج کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اپنا فیتھ پروکلیم کریں اور دوسروں سے ریلیٹ کرنا سیکھیں کہ ہم نے کیسے ریلیٹ ہونا ہے کرسچن لڑکیوں کو, کرسچن خواتین کو, گھرانوں کو. اس لحاظ سے میں بہت انکریج کرتی ہوں کہ باہر نکلیں اور اوپنلی سلیب اٹھائیں. عورت مارچ پہ ہماری ہر دفعہ سلیبیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے اخباروں میں وہ تصویریں لگتی ہیں کہ کرسچن کمیونٹی بھی اپنے حقوق کے لیے آئی ہے, جو بھی مسائل اس کے لیے بات کرتے ہیں. تو کوشش کر رہی ہیں کہ کرسچن خاتون کو طاقتور بنایا جائے پاکستان میں. جی جی غزالہ شفیع صاحب بہت شکریہ, اور مزید بھی بات چیت ہوگی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. تو ایک تو بات بہت واضح ہے, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اور پاکستان سے جو باہر بھی ہیں یہ ایک روشن چہرہ ہے ہمارے پاکستان کا, جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جنہوں نے خواب دیکھا, انہوں نے جدوجہد کی. حالانکہ پاکستانی معاشرے میں بہت آسان نہیں ہے, جیسے غزالہ شفیع صاحب بھی بیان کر رہی تھیں جدوجہد کر, اور خاص طور پہ یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ خود بحیثیت خاتون ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں خواتین کی بحالی کے لیے, ان کو مشکلات سے نجات دینے کے لیے, ان کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ کے جو پریکٹیکل جو آپ کا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, اس کی بیس پہ ہمیں باجی جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ جو معاشرہ ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک تو وہ ہیں جو کہ روشن خیال ہیں, جو خواتین کی آزادی کے خواہاں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھیں, چاہے وہ تعلیم ہو, کوئی بھی شعبہ ہو اس میں آگے بڑھیں, اور وہ خواتین کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ ہے, معاشرہ ہے, اس میں افراد ہیں جو کہ خواتین کی آزادی کو شاید وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ویسٹرن قسم کی آزادی ہے جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب وہ ماروی سرمد اور خلیل الرحمان جو ڈرامہ نگار ہیں ان کے درمیان وہ گفتگو ہوئی, اس پہ بھی معاشرہ ہم نے دیکھا کہ 2 حصوں میں تقسیم تھا. تو ایک تو ہم اس پس منظر کو بھی دیکھتے ہوئے بات چیت کریں گے, اور دوسرا یہ کوشش کریں گے کہ جو خواتین ہیں ان کی جدوجہد کتنی مشکل ہے, کتنا مشکل ہے جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے پاکستان میں کام کرنا. تو سسٹر سبینہ کی طرف میں بڑھوں گا. سسٹر جی کائنڈلی ایک تو اپنا مائک کھولیں. ہاں جی, تو سسٹر جی آپ سب سے پہلے یہ بیان کریں, بتائیں کہ بحیثیت خاتون اور ورکنگ ویمن, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ آج ہم خواب دیکھیں گے, لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں, جنہوں نے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کے, اور ایک ایسا معاشرہ جس میں امن ہو, انصاف ہو, جہالت کے اندھیرے ختم ہو. تو ایک ورکنگ وومن کو آپ کے مطابق جو آپ کا تجربہ ہے, کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خواتین کو, ہر خاتون کو یہ آگاہی ضرور ہونی چاہیے, اور جن کو نہیں ہے ان کو دینی چاہیے آگاہی.
کہ عورت ہونا جو ہے وہ ایک اعزاز ہے. پدر سری نظام نے اس کو ایک اعزاز نہیں رہنے دیا بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے حلقوں میں. تو وہ خواتین جو اس بات سے آگاہ ہیں ان کو یہ پیغام کنوے کرنا چاہیے کہ عورت ہونا ایک اعزاز ہے. اور اگر ہم کسی بھی مذہب کو اگر دیکھ لیں تو ہر مذہب میں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے. یہ آگے معاشروں نے, آگے نظاموں نے, روایات نے اس کو چینج کیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سمسن جاوید نے کہا کہ یہ ایک سوشل پروگرام کے طور پہ ہم لے رہے ہیں, جبکہ جب یہ اس کا ٹاپک جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں مسیحی خواتین کا کردار, تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں ساری خواتین کو چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں, خواہ وہ مسیحی ہو یا خواہ مسلمان ہو یا ہندو ہو. تو ایک تو خاتون ہونا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, نظام کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے نہیں. دوسرا جو ہے وہ خواتین کو کیٹیگریز میں بانٹ دیا گیا. اب جب ہم پاکستان میں بات کریں گے تو میں ایک حقیقت بیان کروں گی, میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ اچھا نہ لگے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین دو کیٹیگریز میں ہیں, خواہ وہ مسیحی ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں. تو وہ ہیں غریب خواتین اور امیر خواتین, ایلیٹ کلاس اور لوور کلاس. تو جو امیر خواتین ہیں, یا جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے تگڑی عورتیں, ان کا وے آف تھنکنگ ایک اور ہے, وہ ایک لیول اور ہے. تو گراس روٹ لیول پہ شاید وہ آ کے نہ سوچ سکیں, کیونکہ زیادہ خواتین جو ہیں جب وہ بہت زیادہ جن کے پاس دولت ہے یا جو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, وہ سوچتی ہیں اس لیول پہ کہ جو مغرب کے جو ہیں سسٹمز جو ہیں یا جو ان کا لیول ہے ان کا بہت اچھا. میں وہ ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ جی مغرب میں ترقی نہیں ہو رہی, مغرب میں فیملیز نہیں ڈیولپ کر رہی. میں کہتی ہوں کہ مغرب میں برابری کا ایک سسٹم ہے, وہاں پہ عزت دی جاتی ہے ہیومن بینگز کو, بینگ ہیومن اینڈ ہیومن بینگ, اس میں فرق سمجھا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ بہت ایک جدوجہد کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں غریب طبقے میں اور امیر طبقے میں. ایک تو ہمیں اس سسٹم کو, یہ چیلنج ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ میں اس کو ختم کر دوں گی یا آپ لوگ اس کے ختم کر سکتے ہیں, ظاہر ہے اس میں سارے فیکٹرز شامل ہوں گے, جس میں سب سے پہلے ماں باپ کا رول ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہے. پھر مذہب کا رول ہے, مولاناز کا, علماء کا رول ہے, یا ہمارے فادرز کا, یہ جو ہیں پاسٹرز جو ہیں, چرچ کا رول ہے. پھر معاشرے کا رول ہے, اور پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. جب یہ چاروں جو ہیں مل کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو ہم بھی ایک دن ان ملکوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جہاں پہ بینگ ہیومن اور ہیومن بینگز کا ڈفرنس سمجھ آ جاتا ہے. اور پھر عورت کی عزت جو ہے وہ ایک مرد کی طرح یا ایک انسان کی طرح ہونی شروع ہوگی. تو خواتین کو جو زیادہ مشکلات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو غریب خاتون ہے اس کو تو سب سے پہلے جا کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے, اسے لو سٹیٹس جاب کرنے پڑتے ہیں, اور جو روایات کے نام پہ پدر سری نظام میں تذلیل کی جاتی ہے, اسے بہت ساری روایات پہ قربان کر دیا جاتا ہے. تو پہلے تو ہمیں جو کر سکتے ہیں ان کو اس بات کی آگاہی دینی چاہیے. جب ہم آگاہی نہیں دیتے, جب ہم شعور نہیں دیتے تو ہم خود اندر سے مر جاتے ہیں. تو اسے میں ایک شعر کی صورت میں آپ کو بیان کروں گی, آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ جب آگاہی ہو اور ہم اسے دے نہ پائیں یا ہم اسے پریکٹیکل نہ دیکھ سکیں تو اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آگاہی مجھ کو کھا گئی ورنہ, آگاہی مجھ کو کھا گئی ورنہ میں نے جینا تھا اپنے مرنے تک. تو جب ہم آگاہ ہیں, جب ہمیں آگاہی ہے کہ ایک خاتون ہونا جو ہے وہ کس قدر اعزاز کی بات ہے, کیونکہ وہ تخلیق کار ہے, وہ تخلیق کرتی ہے. ایک خالق ہے صرف خدا اللہ,
اور اس کے بعد جو تخلیق کار ہے وہ عورت ہے. تو یہ کس قدر بڑا اعزاز ہے. تو ہمیں سب سے پہلے خواتین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خاتون ہونے پہ خوش ہوں, اسے اعزاز سمجھیں. کیونکہ جب فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم یا بی بی مریم کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا تھا سلام اے پر فضل, سلام جس پر فضل ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت ہونا جو ہے وہ ایک فضل کی بات ہے. اٹس اے گریس فلڈ پرسن. عورت جو ہے وہ فضل سے بھری ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنم دیتی ہے, اور اس میں ہم خدا کے رحم کا بھی تجربہ کرتے ہیں, کمپیشن آف گاڈ. عورت ماں جب بنتی ہے تو وہ ہمیں اس کا تجربہ کرواتی ہے. یعنی کہ عورت میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ 2 پاؤنڈز کا ہوا ہے تو بھی ماں کا رحم جو ہے وہ اسے لچک دے گا, اور اگر وہ 6 پاؤنڈ کا ہے تو پھر بھی ماں کا رحم جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ اس کو بھی جنم دے گا. تو ان مدرس وomb we experience God's compassion. تو عورت کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ آگاہی دینی ہے کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مخلوق ہے, وہ کسی سے بھی کمتر نہیں ہے. اگر کسی پدر سری نظام نے اسے یہ باور کرایا یا اسے رسموں کی بھینٹ چڑھایا تو اب اسے سدھر جانا چاہیے. اور اگر وہ نہیں سدھر رہے تو پھر ہم خواتین جو ہیں یا وہ مرد یا وہ انسان جو اس بات کو سمجھتے ہیں, ہم سب مل کر اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ برابر کی انسان ہے, بلکہ وہ اس لحاظ سے اعلیٰ ہے کہ وہ ایک ماں ہے, وہ ایک تخلیق کار ہے, اور اس کے مختلف رول ہیں, بہن, بیٹی, بیوی, ایک گرو, ایک استاد. تو خواتین کو ہمیں بتانا ہوگا کہ اسے اپنے عورت ہونے پر بہت ہی اطمینان اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اسے اپنے عورت ہونے کے مقصد پر غور کرنا چاہیے. اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے, کیا وہ ایک تخلیق کار کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. اسے اپنی وجہ تخلیق سے الہام کشید کرنا چاہیے, کیونکہ تخلیق کار جو ہے اسے ہمیشہ الہام ہوتا ہے, اور وہی الہام جو ہے وہ دوسروں میں محبت اور خوشی کی صورت میں بانٹتی ہے ایک ماں. یعنی ایک ماں کے ہاتھ میں ہے کہ جب بچہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کی تربیت کیسے کر دیتی ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں بیج آئے, میرے ہاتھ میں ایک بیج ہے تو وہ ایک درخت ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ میں اس کو کیسے گرو کروں گی. تو ایک ماں جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, اس کے ہاتھ میں بچہ جو ہے وہ اس کی جیسے چاہے تربیت کر سکتی ہے. یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے سوال کہ رکاوٹ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے. بہت ساری خواتین کو اسکول جانے کا موقع نہیں ملتا. تو جب انہیں ہم آگاہی دے پائیں گے, جب ریاست ان کو یہ بتا پائے گی کہ انہیں جو ہے وہ اپنے ہونے کی وجہ جو ہے وہ جاننی ہے, تو پھر عورت جو ہے وہ دنیا میں انقلاب لے آئے گی. وہ انقلاب خوشی کا اور اطمینان کا اور امن کا ہوگا. اور وہ جیسے کہ اقوام متحدہ نے جو 30 نکاتی ایجنڈا, امن ایجنڈا پیش کیا ہوا ہے, اور جس کے مطابق 2030 میں دنیا جو ہے وہ پرامن اور تشدد سے پاک دنیا ہو جائے گی یا وہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کی 5ویں شق میں جو ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کو برابری کی حیثیت ہے. تو خواتین کا تو میں سمجھ لوں کہ حیثیت بہت بلند ہے, ہمیں اس کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی سسٹر جی, بہت شکریہ. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا, اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ہیں, ان میں غریب خواتین ہیں, ان کی سوچ فرق ہوگی, امیر ہیں, جو ایلیٹ طبقے سے ہیں. پھر آپ نے بہت زور دیا کہ عورت ہونا ایک آزاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو پاکستان میں یا کہیں پہ بھی خواتین ہیں وہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے انہیں خواتین بنایا ہے, اور اس اعزاز کو قبول کرنا چاہیے اور اس پہ افسردہ نہیں ہونا چاہیے. اور تعلیم جو ہے وہ برابر کے حقوق نہیں ہے. اور اچھا, میں یہ بڑھنا چاہوں گا شازیہ صابر کی طرف. شازیہ نوید جو ہیں, شازیہ نوید ایک تو کائنڈلی آپ اپنا مائک جو ہے وہ کھولیں, تو پھر ہم جو گفتگو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. جی سسٹر جی جو ہے وہ بڑے واضح انداز پہ بیان کر رہی تھی کہ جی سسٹر جی جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں
बयान कर रही थी कि जो औरत होना है कि ये कोई जुर्म नहीं है, इसमें फ़ख्र होना चाहिए। और जो हमारा आज का जो मौज़ू है वो ये है कि जो ख़वातीन हैं उनका किरदार जो है, तो वो भी उन्होंने कुछ बयान किया कि किरदार जो है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो हर मुआशरा ख़वातीन के किरदार को तस्लीम भी करता है, एप्रिशिएट भी करता है उनको। और जैसे मैंने वो शेर भी अल्लामा इकबाल का एक मिसरा पढ़ा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसको भी एक्नॉलेज करता है। जो इल्हामी किताबें हैं वो भी ख़वातीन की अहमियत को, वजूद को तस्लीम करती हैं, एप्रिशिएट करती हैं। एक तहकीक के मुताबिक बच्चा जो है वो अपनी फितरत का, सिस्टर जी भी बात कर रही थी, वो 80% जो है वो माँ से लेता है, फितरत जो बच्चे की बनती है 80% माँ की, और 20% जो है वो सिर्फ बाप से होता है। तो आप अंदाजा करें कि एक खातून का, औरत का जो नई नस्लें हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनके किरदार में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो सिस्टर जी कह रही थी कि हमें उस पे खुश होना चाहिए। शाज़िया नवीद साहिबा, आप ये बताएं कि एक तरफ तो औरत को बहुत अहमियत दी गई है इल्हामी किताबों में भी, और जैसे हम बातें भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी रुकावटें हैं उनके लिए, जैसे जो इक्वल मौके हैं वो फराहम नहीं किए जाते। खवातीन को बहुत लिहाज से कई बार कानून जो है वो भी उन्हें वो प्रोटेक्शन या वो जो बराबर के हकूक है वो नहीं मिलते। खवातीन घरेलू तशद्दुद है, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान में भी छोटी बच्चियों के साथ। तो आप ऐसी सूरत-ए-हाल में जो वर्किंग वीमेन हैं, जो काम कर रही हैं, जो एक जद्दोजहद कर रही हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, तो आप इस जद्दोजहद को कैसे देखती हैं? ये क्या आसान काम है या बहुत मुश्किल है? आप अपने तजर्बे की बिना पर थोड़ा-सा बयान कीजिए। वेल मैं समझती हूँ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम इसको जो है वो आज जो सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं, ख़ास तौर पे बिलख़ुसूस हमारे पाकिस्तान में जितनी भी बुराइयां हमें नज़र आ रही हैं, तो उसके पीछे जो है वो जेंडर इक्वलिटी जो है ना वो उसकी बेस बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतों को जो है वो उनकी तजलील की जाती है, जैसे आपने बताया और जैसे बहन सबीना भी बता रही थी कि औरत होना एक फ़ख्र की बात है और उनका ख़ास मकसद है। और आपने भी बड़ा इल्हामा इकबाल का खूबसूरत शेर जो है वो कोट किया कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और हम समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो कायनात जो है वो मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी तज़लील भी की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो औरत को ही करनी पड़ती है। इसीलिए तो नेपोलियन बोनापार्ट को भी कहना पड़ा कि अगर तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें बेहतर कौम दूँगा। तो हमारे मुआशरों की जो तरक्की का जो राज़ है वो औरत की कुख में है, वो औरत से है। और अगर आज कोई मुआशरा जो कामयाब है, तो उसके पीछे औरत की बहुत सारी जो है सैक्रिफाइसेस हैं। लाइक अभी हम बात कर रहे थे बहन वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रही थी। तो मैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहती हूँ, फ़िनलैंड में रहती हूँ, और यहाँ पर जब मदर्स डे आता है, तो औरत की माँ की जो है वो अज़मत को सलाम पेश करने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर कौमी परचम जो है वो फहराया जाता है, उसे ऑनर दिया जाता है, और ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे है। और मैं समझती हूँ कि अगर यही बात हमारे मुल्क में तस्लीम कर ली जाए, उसकी जो है वो उसको समझ लिया जाए कि औरत कितनी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम एक स्लोगन के नीचे काम कर रहे हैं कि ख़वातीन तब्दीली की सफ़ीर। और अगर औरतों को मौका दिया जाए तो वो दर हकीकत जो मुआशरे में खूबसूरती है, तो मेरा ख्याल है वो एक सफ़ीर के तौर पर इस सोसाइटी में बड़े अच्छे से रोल प्ले कर सकती है। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो एक क्रूशियल पार्ट अदा करता है। और यहाँ पर किसी एक शख्स का काम नहीं है, जैसे हम वर्किंग विमेन्स हैं जो काम कर रही हैं, यही इन्हीं का काम नहीं है कि हम काम करें, बल्कि हर कॉमन मैन और वीमेन को जो है वो इसमें रोल प्ले करना है, और हमें जो है वो एजुकेट करना है लोगों को। हमें मुख्तलिफ अभी हम मसाइल को जो है वो बहुत सी में जो है वो जो है दोहराते हैं, और सोशल मीडिया पे भी हम तरह-तरह की जो मसाइल को जो वो देखते हैं, और हमारा दिल भी दुखी होता है और हम परेशान होते हैं। और वर्किंग लोग जो काम कर रहे हैं इनके लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो हम जो जैसे बताया कि हम मोस्टली उन लेडीज को जो है वो टारगेट कर रहे थे कि जो प्रोस्टिट्यूशंस करती थी। तो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत से हमें
थ्रेट्स भी मिलते थे, और हमने ये काम जो है बहुत ओपनली नहीं किया। हमने इसको जो है 1-on-1 मीटिंग में जो है वो इसको सरंजाम दिया, और अभी भी हम कोई बहुत वेल नोन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट हमें इसका अफसोस भी नहीं है कि हम क्यों नहीं जानी जा रही हैं, और हमें क्यों जो है वो हमारा सोशल मीडिया पे चर्चा, हम इसी को जो इसी तरह हिडनली काम करना चाहती हैं ताकि हम जिंदगियों को संवारें। हम यंग वीमेंस के लिए हम सेमिनार्स को अरेंज करते हैं, एजुकेशनल सेमिनार को अरेंज करते हैं, फिर तालीम बालगा के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं ताकि वीमेंस को एजुकेट किया जाए, और ये साथ साथ जो है वो हमने विमेंस के हटकर हमने जो है वो लड़कों के लिए भी इस तालीम का जो है वो इनकार किया हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लेडीज को तालीम देना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे यूथ को जो है वो अवेयर करने की जरूरत है। अगर आज यूथ हमारी अवेयर होती है तो ये जो बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, मेरा ख्याल है इसकी रोकथाम में ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें और ज्यादा बहुत सी जो है वो समझती हूँ कि अवेयरनेस की जरूरत है, जिससे हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बुराई को रोका जा सकता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से काम जो रोकथाम के लिए बहुत से चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ता है, और हम जान भी रहे हैं कि ये कोई इजी टास्क नहीं है पाकिस्तान में काम करना, मोर देन जिस तरह हम वेस्टर्न में कल्चर में बैठी हूँ, ये इतना आसान है। पे बच्ची की टीम के लिए जब वो 11-12 साल की होती हैं तो उनकी बलूगत के लिए प्रोफेशनल्स दी जाती हैं, फिर उनको मैरिजेस मीटिंग्स दी जाती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी बहनें हैं वो जन्म ले रही है। मैं समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी शाहजा साहब बहुत शुक्रिया, और दोबारा भी फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं इससे पहले कि मुंगसा बानो की तरफ बढ़ूं, मैं कैथरीन सपना को अभी उनसे बातचीत करना चाहता हूं। कैथरीन सपना, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने बड़ी जद्दोजहद की, आपका जो पस मंजर आपने बताया कि कोई बहुत उस तरह घराने से नहीं था, आपके वालिद कैटेकिस्ट थे, आपने एक जद्दोजहद करके तो इस मुकाम तक पहुंची हैं। एक तो काइंडली जरा अपना माइक खोलें, ठीक है, ताकि फिर आप बातचीत कर सकें। तो आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे जो खवातीन का जो काम है, ठीक है, वो उसको किस तरह देखा जाता है, जो खवातीन जो काम करती हैं, एक तो ये आपने बताना है। और दूसरा जो वाकयात हैं पाकिस्तान में खास तौर पे खवातीन के हवाले से जो तशद्दुद है बच्चियों पे, वो चाहे जिस्मानी हो, नफ्सियाती हो, और जिनसी तशद्दुद है, वो उसकी क्या वजूहात है, क्यों इतना ये बढ़ रहा है? तो काइंडली ये जरा 2 क्वेश्चन जो मैंने किए, इनके जरा आप जवाब दें। जी कैथरीन सपना। जी, थैंक यू फादर जी। अ, जैसे कि सिस्टर सबीना ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की कि जो औरतें हैं वो 2 तरह की हैं पाकिस्तान में, या पूरी दुनिया में कह सकते हैं, लो लेवल की और अपर लेवल की। तो इसी तरह से जो काम की कैटेगरीज़ हैं ये भी डिफरेंट हैं। जो अपर लेवल की ख़वातीन हैं, वो बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब्स कर रही हैं। कोई किसी बड़े इदारे की सरबराह हैं, कोई पायलट हैं, या कोई टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी। तो इसी तरह से जो लोअर लेवल की ख़वातीन हैं वो हम अभी सिस्टर जी ने भी ज़िक्र किया, और चूँकि हमारा काम भी औरतों के साथ है तो वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा, और फिर जो ब्रिक फैक्ट्रीज़ पे औरतें काम कर रही हैं, वो भी काम ही कर रही हैं। तो थोड़ा-सा ये फ़र्क आ जाता है, डिफ़रेंस है। अब सबसे पहले मैं अपर लेवल की ख़वातीन के बारे में बात करूँगी कि चैलेंजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरी जो यहाँ पे बहनें हैं पैनल में, उन्होंने भी एग्री किया कि औरत होना ही एक चैलेंज है। ये पूरी दुनिया में जो बात है, ये औरत होना एक चैलेंज है। तो जब काम करते हैं, हम फील्ड में निकलते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज आता है कि मर्दों की जो नज़रें होती हैं, वो इस तरह से आपको घूर रही होती हैं कि आप एक एक दफ़ा तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपने करना क्या है। आपका जो माइंड है वो ही पूरा जो है ना फ्लैश हो जाता है कि आपने एक दफ़ा भूल जाते हो कि अच्छा क्या काम है। फिर उसके बाद जो है वो मतलब आप अगर डटे रहते हो, ये तो मैं भी यहाँ पे एक शेर कोट करना चाहूँगी कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हमारे साथ यहाँ पे पैनल में भी मौजूद हैं और बहुत सारी हमारे जैसी ख़वातीन हैं,
जिन्होंने डट कर जो है वो इस सोसाइटी का मैं गंदी सोसाइटी तो नहीं कहना चाहती, लेकिन इस तरह की जो चीजें फेस करना पड़ती हैं जब सोसाइटी में, तो उनको हम सब ने फेस किया है। और उसके बावजूद हम डिटाई के साथ काम कर रहे होते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो सबसे आगे होता है। तो अभी अगर मैं अपने काम के हवाले से बात करूं, तो जब मैं पुलिस स्टेशंस में जाती हूँ, जब कोई किसी केस की बात का पता चलता है, हमें किसी केस का पता चलता है कि कोई लड़की जो है उसके साथ रेप हो गया, या अटेम्प्ट टू रेप है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी दो तरह की है। एक तो अपने ही फैमिली में लड़कियां जो हैं वो वायलेट हो रही होती हैं या उनपे वायलेंस हो रहा होता है, और दूसरी जगह पे वो काम कर रही होती हैं, वहां पे उनके साथ तशद्दुद हो रहा होता है। तो हमारे पास ऐसे-ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जहाँ पर जो औरतें घरों में काम करती हैं, वहाँ पे उनपे तशद्दुद किया जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि पहली बात तो ये होती है कि वो काम छोड़ के ना जाएँ। दूसरी बात होती है कि कोई ना कोई जो मर्द फैमिली में जो मर्द होता है, वो उस फैमिली वो उस औरत के साथ अपना कोई ऐसा लिंक बनाने की कोशिश करता है कि वो उस औरत को अपने कह लें कि फिजिकल रिलेशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर प्रेशराइज करते हैं। तो इस तरह के केसेस भी हमें पुलिस स्टेशंस में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पहली बात तो होती है कि एटलीस्ट मुझे तो खैर इतना ज्यादा वो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं मेरा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि एक तो मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबर भी हूँ, और दूसरा मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ सीटीएस की। तो इस तारुफ से जो होता है वो पुलिस अच्छे से बात सुनती है। लेकिन वो जो रवैया होता है, समटाइम्स जब उनको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया होता, उससे पहले जो उनका एटीट्यूड होता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो जब उनको आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, फिर जाके वो सुकून से आपकी बात सुनते हैं, फिर तो आपको चाय भी पेश कर रहे होते हैं और आपको जूसेस भी मंगवा के दे रहे होते हैं कि जी ये आपके लिए चाय पानी है। तो इस तरह से जो है लाइक जब खवातीन जो वर्किंग वुमेन है, उनको भी मेरे ख्याल में इसी तरह से दूसरी जो औरतें हैं, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरह से दूसरी औरतों का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। और ज़्यादातर हमारे जो पिछले सालों में काफ़ी सारे केसेस हाइलाइट हुए, जब नर्सेस पर जो था काफ़ी दबाव डाला गया कि आप इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो उनकी जॉब खतरे में थी। और इस तरह से जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें, तो मुसलमान आदमी से शादी कर लें। और इस तरह की जो प्रेशर है, वो चाहे अपर लेवल की खवातीन है, चाहे वो निचले लेवल की खवातीन है, उनके ऊपर होता है। 2014 में मैंने एक केस स्टडी की, बल्कि उस केस को हैंडल भी किया। एक स्कूल की प्रिंसिपल थी जो क्रिश्चियन थी, और वहां पर मेजोरिटी जो स्टाफ था वो मुस्लिम था। वो 4-5 साल से उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, और काफी वो अच्छी थी स्टाफ के साथ। एक उन्होंने नई टीचर जब हायर की, तो वो काफी इस्लामिक विजन की थी, और उन्होंने आते सारी अपनी चीजें जो थी अपनी मनमानी शुरू कर दी कि यहाँ पे जी इस्लामियात का पीरियड होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। तो जब वो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं हमें ऐसे ही करना है, तो उस खातून ने प्रिंसिपल के ऊपर ब्लास्फेमी का केस कर दिया। तो उस केस में जो था वो, खैर हमने इन्वेस्टिगेशन में ही उनको जो था वो रिलीज करवा लिया, वो सारी चीजें जो फैक्ट्स थे वो सारे सामने आ गए। तो वो अरेस्ट नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हमने होने दिया। लेकिन इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि औरतों को सामने होते हैं। जी जी। कैथरीन सपना, बहुत शुक्रिया। आप बड़े वाज़ेह अंदाज से जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं, ख़ासतौर पे वर्किंग वीमेन को, और जो आपका काम है, और आपने पुलिस स्टेशन का भी ज़िक्र किया कि वहाँ पे कैसी सूरत-हाल होती है जो वर्किंग वीमेन है। तो एक तो इससे पहले कि मैं मुकस्सब बानों की तरफ आगे बढ़ूँ, हम शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम अहबाब के जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं इस वक़्त ऑनलाइन। और एक तो वो जो टॉपिक है, जो मौज़ू है, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मौज़ू है जो हमने चुना है। नैन्सी यूनुस हैं हमारे साथ, सरवर भट्टी हैं, फादर अदील मज़हर जो हैं वो हमें वॉच कर रहे हैं वहाँ से, बेल्जियम से।
मुमताज़ अनायत हैं, जॉर्ज है, और श्री असलम साहिबा अटक से हैं, ये भी हमारे साथ आती हैं। तो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे जो वीमेन हैरेसमेंट है उसको भी मौजू बनाएं और उस पे बातचीत करें, तो वो भी हम मुकस्सब बानो की तरफ जब मैं आता हूँ तो वो करेंगे। सलामत यूसुफ हैं, बहुत शुक्रिया। साजिद मसीह हैं, फादर जेम्स चनन है, फादर जेम्स चनन है हमारे साथ, जॉर्ज भट्टी और टिम्थी पॉल। हाँ जी, तो ये जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं बात करना चाह रही हूँ। गजाला जी, साहब, गजाला शफीक साहब आप नजर नहीं आ रही। जी जी, we can't see you। मैं सिर्फ ना बताना चाह रही हूँ कि मैं निकल रही हूँ राशन ड्राइव के लिए, सॉरी। तो रास्ते में अगर मैं ऑनलाइन होंगी, अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं कर सकूंगी, लेकिन मैं अभी गाड़ी में बैठ रही हूँ। हम रात को राशन ड्राइव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी जी, बस यही बताना था, अगर आप बात करना चाहेंगे तो मेरे पास अवेलेबल होगा, लेकिन शक्ल मेरी अंधेरे में ही आएगी फिर, ठीक है? अच्छा चले, कोई बात नहीं, थैंक यू ये बताने का। ठीक है, हम आपको साथ ले लेंगे अपने। जी जी, ओके जी ओके, मैं थैंक यू फोन गजाला और शफीक डिवाइस साहब। साथ लेके जा रही हूँ। जी जी जी, थैंक यू। मुकस्सब बानो साहिबा, एक तो थैंक यू कि आपने बड़े पेशेंस के साथ सबको सुना, और जैसा आपने देखा कि सिस्टर जी ने भी बताया ख़वातीन की जो अज़मत है उसके बारे में उन्होंने बात की, और जो मसाइल हैं, और कैथरीन सपना ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज़ से बयान किया। और ये जो बिशीरी असलम है वो कह रही थी अटक से हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन के साथ जो हैरेसमेंट है, उनको जो हरासा किया जाता है, और उसके साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं। तो एक तो आप ये बताएँ कि जो ये वाक़यात जो हैं, ये जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं वाक़यात जो हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या हमारा कानून बेबस है? क्या जो कल्प्रिट्स हैं उनको वो सज़ा नहीं दी जाती? और ये जो छोटी बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे जो वाक़यात हैं, ये शर्मनाक हैं, ये किसी भी मुआशरे में इनको काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या बात है, क्या वजह है कि ये वाक़या जो है वो बढ़, क्या हमारा मुआशरा जो है वो ज़हनी तौर पे पसमानदा है, बीमार हो गया है, क्या बात है? तो क्योंकि आपका बहुत काम है इस हवाले से, और आप बिला रंगो नस्ल मज़हब आप ख़वातीन की बहाली के लिए मुआशरे को बेहतर देखने के लिए काम कर रही हैं। तो काइंडली आप जो इस हवाले से जो ख़ास तौर पे जो हैरेसमेंट है इसके बारे में ज़रूर बात करें। जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें हुई। तमाम जितनी बहनें, सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें भी की। जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, ना सिर्फ मशरिक़ में, मगरिब में भी ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको मैं भी हाईलाइट करूँगी कि हम सिर्फ बात करते हैं पाकिस्तान की, हम बरतानिया में बैठे हुए हैं, जैसे फ़िनलैंड में बैठी हुई हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केसेज़ अगर पाकिस्तान में हैं तो रेशियो का फ़र्क है, लेकिन केसेज़ यहाँ पर भी होते हैं। खातून और औरत का जो मुकाम तमाम मज़ाहिब में, ना सिर्फ ईसाइयत में या यहूदीज़्म में, कुरान में भी अगर औरत का तकद्दुस देखा जाए तो उसके तकद्दुस में सूरह मरियम से बड़ी मिसाल हमारे सामने नहीं है कि औरत का जो मुकाम है। और जब तालीम की बात आती है, महद ता लहद, कि औरत की गोद से लेके कब्र की खुदाई कब्र तक आपको इल्म हासिल करना है तो वो महद माँ की गोद होती है। वो जी जी, एक औरत होती है जो मुआशरे को तालीम देती है। हैरेसमेंट में मर्दों के साथ, हम जब बिदरशाही निज़ाम की बात कर रही थी, सिस्टर ने कराची से जो थी, शायद उनका नाम सबीना है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गजाला शफीक गजाला शफीक साहिबा साहबा। जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की कि हम कैटेगराइज़ कर देते हैं औरतों को एलीट और लोअर तबके की खातून में। यहाँ से जब हम इनको कैटेगराइज़ करते हैं तो जो लोअर तबके की बच्चियाँ होती हैं, और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया मोबाइल के ज़रिए हर घर तक पहुँच चुका है, एक बीमारी और नासूर की तरह हमारी जड़ों को खोखला भी कर रहा है। मैं बहुत लिबरल हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों में मैं समझती हूँ कि हमें एक बैलेंस रखना चाहिए मुआशरे में। जब हाँ, आज़ादी बच्चियों को दें तालीम में, आज़ादी बच्चियों को दें उनके हुकूक समझने में। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि हम अपने हम जो एक हमारा मुकाम एक मुआशरा है जिसमें हमें बहुत खूबसूरत एक मुआशरा है जिसमें रिश्तों का तकद्दुस है, जिसमें बाप है, भाई है,
शौहर है, आपके दीगर जो मर्द आपके इर्द-गिर्द हैं, वो बहुत खूबसूरत एक मैं कहती हूँ औरत को एक बहुत खूबसूरत दिया गया, प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन वो हमने ये देखना है कि वो जो प्रोटेक्शन वॉल्स अराउंड हमारे हैं, हमारे इर्द-गिर्द जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, जिसमें बाप हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, शौहर हो गया, क्या वो हमें उस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? रेप अगर हुए तो बच्चियों के साथ घरों के अंदर हो गए हैं। बाप भाई मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में हमने देखना है हमारी रियासत क्या किरदार अदा कर रही है। ये जितने भी इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं, जिसमें लैक ऑफ एजुकेशन है ख़वातीन के लिए, उनको अगर उनके सेहत के हवाले से उनके मसाइल हैं, उनकी तालीम के हवाले से मसाइल हैं, उनके हकूक के हवाले से मसाइल हैं, उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, उनके जो चाहे वो शरीयत ईसाइयत में भी है, यहूदीज़्म में भी है, हिंदुओं में भी है, हमारे सिख बहन भाई भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर जगह पे उनके हकूक हैं, लेकिन वो गस्प किए जा रहे हैं। गस्प क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे कोई लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज अपना काम उस तरीके से नहीं कर रही हैं। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी रियासत है, वो अपना किरदार जिस तरीके से करना चाहिए वो अदा नहीं कर रही है। जहाँ पे रियासतें कमजोर हो जाए, वहाँ पे इस तरह के इश्यूज तो वो एकदम से उठते हैं और फिर वो एक ब्लास्ट की तरह हमारे मुआशरे को तबाह कर देते हैं। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एलीट क्लास को पकड़ लेते हैं ऊपर से। और जैसे एक सिस्टर ने कहा कि एलीट क्लास के इश्यूज टोटली डिफरेंट हैं। उनको क्या पता कि ग्रास रूट लेवल पे बैठी हुई औरत, बच्ची, माँ, बहन के क्या इश्यूज हैं? वो कैसे समझेंगे? क्योंकि वो उस माहौल में पली बड़ी नहीं है। हमने औरत मार्च तो निकाल दिया, औरत मार्च निकालने वाली एलीट क्लास की खवातीन है। वो आपने कहीं देखा है कि मैं औरत मार्च के हक में हूँ, औरत मार्च निकाली जाए हकूक के लिए, तालीम के लिए, मजीद यूनिवर्सिटीज के लिए, हेल्थ सेंटर्स के लिए, जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए। लेकिन कहीं पे भी आपको मार्च में जो मैं औरत फाउंडेशन के साथ 98 ऑनवर्ड 2013 तक उनके साथ ट्रेनिंग्स लेती रही। मैं स्पार्क के साथ काम करती रही। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों के सिस्टर ने बात की कि बिल्कुल जो डोमेस्टिक केसेस होते हैं, जब हमें या हैरेसमेंट केसेस होते हैं या रेप केसेस होते हैं, मुझे बहुत दफा सामना करना पड़ा है पुलिस का। मेरे अपने बहुत से इश्यूज रहे हैं, कई लिहाज से हमें बहुत से जगह पे जाना पड़ता है। और को वाकई जब आप ऐसे सेंटर्स में, हमारी जो पुलिस की बात कर लूं, हमारी पुलिस के पास इतनी यहाँ से कमी है, यहाँ पे उनको चेंज करना है। डिग्रीज ले लेने से या उनको पढ़ा के अपर क्लास में बिठा देने से या उनको ओहदे दे देने से उनकी सोच नहीं बदलती है। सोच को बदलने के लिए हमने नीचे से खुदाई करनी है, ग्रास रूट लेवल पे जाके इनको ऐसी खाद डालनी है, ऐसा पानी देना है जो उनकी नशो-नुमा करे और जो अगली आने वाली नस्लें हैं उनके लिए वो बहरामंद हो सके। हैरेसमेंट हर जगह पर है। हमने चूंकि आज का टॉपिक हमारा था वर्किंग क्लास खवातीन का, जिसपे हमने सॉरी टू से हमने उस तरीके से बात नहीं की। भट्टा मजदूर औरतों की बात की जाए, जो औरतें भट्टा मजदूरी कर रही हैं, कभी जाके मैंने बहुत दफा विजिट किया। मैं 1 साल मैंने जैसे बताया कि मैं वो चाइल्ड लेबर ऑब्जर्वर भी नहीं ऑब्जर्वर थी, तो मैं जाके जब भट्टा मजदूर खवातीन के पास जाके इश्यूज पता करती थी, बहुत कम ऐसे भट्टा मालिकान थे जो कि अपने वर्किंग क्लास लेडीज को एजुकेट करते थे। वो कैसे एजुकेट कर सकते हैं? उन्होंने अपने मजदूर खत्म तो नहीं करने ना, क्योंकि जब वो एजुकेट कर देंगे वो अपनी अवेयरनेस आ जाएगी चीजों में, बच्चों में, वो अपने हकूक के लिए बात करना सीख जाएंगे। और जहाँ पे हकूक के लिए औरत खड़ी होती है, वहां पे उसकी जुबान काट दी जाती है, वहां पे उसको कह दी मादर पिदर आजाद हो। क्योंकि हमें यहाँ से अपनी सोच को बदलना है। हमने यूनिवर्सिटीज, स्कूल, मदारिस सब कुछ बन गए हैं, हमने हाफिज खड़े कर दिए हैं, लाइनों पे हमारे हाफिज कतार दर कतार चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एक हाफिज उठ के बताए जो कि अपने घर की अपनी बहन, माँ, बेटी के हकूक के लिए बात करता होगा। मर नहीं जाएंगे वो बात करेंगे, उनको तो मौत आ जाएगी। जब उन्हीं की अपनी बहन बेटी कुरान पढ़कर जब अपने हक के लिए बोलेगी कि मुझे मेरा विरासत में हिस्सा दिया जाए, वो तो उसको कत्ल कर देंगे, उसको मार दी जाएगी कि जी ये तो आजाद हो गई है, इसको तो बोलना आ गया। कुरान आपको दे रहा है जो हकूक, हम कुरान की मुनाफी करते हैं, हम अपने मुआशरे की मुनाफी कर रहे होते हैं। मुआशरा आपको हकूक दे रहा है, आपकी रियासत आप औरत को हकूक दे रही है कि
ہر عورت کا یا بچے کا اس کا فطری حق ہے کہ وہ اس کو ایجوکیشن دی جائے, اسے اچھی صحت دی جائے, اسے معیاری زندگی دی جائے جو وہ اپنی آسان زندگی گزار سکے. لیکن ہم صرف ایک مرد کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے, ہم نے اس پورے معاشرے کو قصوروار ٹھہرانا ہے. اس کی ذمہ داری پورے معاشرے پر. ہم صرف یہ مردوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہہ دیں کہ جی سارا قصور مرد کا ہے. نہیں, سارا قصور مرد کا نہیں ہے. اتنا ہی جتنا قصور مرد کا ہے اتنا ہی قصور عورت کا بھی ہے. ہمیں اپنے حقوق کے لیے اپنے اگر ہم ورکنگ وومنس ہیں تو ہمیں اپنے حقوق جاننے کے ایک ورک پلیس میں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں برطانیہ میں بھی بعض جگہ پہ ایسی ہیں کہ عورت کو مساوی ویجز نہیں دی جا رہی. ایک ہی جگہ پہ عورت مرد کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی عورتیں اپنے مساوی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی عورتیں فائٹ کر رہی ہیں, برطانیہ میں بھی خواتین اپنے حقوق کے لیے فائٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ بھی ان کو وہی ایشوز ہے, لیکن یہاں پہ ان کی سنی جاتی ہے, ان کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بولیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں پاکستان میں یہ حقوق حاصل نہیں ہے. تو خدارا ہمیں حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے معاشرے کو اس چیز کی تعلیم دینی ہے. جب تک ہم تعلیم کی طرف فوکس نہیں کریں گے, ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اپنے بہن بھائیوں بچوں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بھائی اگر دونوں مرد و عورت اپنی تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے ایک ساتھ, ہم صرف لکھنے اور محاورہ بولنے کی حد تک کہ جی عورت اور مرد میاں بیوی سائیکل کے دو پہیے ہیں, اور ہم مثالیں تو ہمارے پاس ڈھیروں پڑی, لیکن ہم ایک کو تو کیا کہتے ہیں نوالا سونے کا کھلاتے ہیں اور عورت کو دھتکار دیتے ہیں. ہم گھروں میں دیکھیں مائیں ہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں کہ بیٹے کی ایجوکیشن کی طرف زیادہ زور ہوگا کیونکہ بیٹا کماؤ پوت ہے. بیٹیوں کو ایجوکیشن کی طرف کہ جی اس نے میٹرک کر کے تو کیا کرنا ہے, شادی کر دینی ہے. بھی شادی کر کے اس نے آگے اگلی نسل چلانی ہے. کم از کم انہیں ایجوکیشن کو صرف ڈگری تک ہم نے رکھ لی ہے, اس کے اندر کی روح کو ہم نے مار دیا. آپ نے بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور دیکھے ہوں گے, اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کے اندر کا جو زہر ہے ان کے لفظوں سے نکلتا ہے. ان کی ڈگریاں دیکھیں تو بڑے بڑے مدارس کی ہائی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹس ہیں, لیکن کبھی آپ ان کی زبان سنیں تو جو ان کے اندر کا زہر ہے وہ ان کے لفظوں سے عیاں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جہاں ایجوکیشن آ جائے گی, انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی, تب جا کے یہ جو ہمارے ایشوز ہیں یہ بہت چھوٹے ایشوز لگیں گے ہمیں. ہمارا جو بڑا ایشو ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو خدا رہا اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور تاکہ ہم اپنے حقوق کو اچھی طریقے بحسن طریقے سے سمجھ سکیں. جی مقدسہ بانو بہت شکریہ. بہت واضح انداز سے آپ نے مثالیں دے کے بتایا کہ جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, اور خاص طور پہ جو پاکستانی معاشرہ ہے خاص طور پہ اس میں یہ جو واقعات ہیں ان کے بڑھنے کی جو وجوہات ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے کہا کہ جو خواتین ان کو تعلیم جو ہے وہ برابر کے حقوق ملنے چاہیے اور آگاہی ملنی چاہیے. یہی ایک ذریعہ بیسک جو اویئرنیس کا, کیونکہ جب آگاہی ہوگی روشنی ہوگی تو پھر وہ مسائل کام ہوں گے. میں یہاں پہ سیمسن جوید صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں. سیمسن جوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے روح رواں ہیں. اور سیمسن جوید صاحب جیسے آپ عرصہ دراز سے جو صحافی ہیں آپ اور کالم نگار بھی ہیں, آپ خواتین کے حقوق کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور بات بھی اس پہ کرتے ہیں. بڑے واضح انداز سے جو آج پینل ہے انہوں نے واضح کیا جو آج کا موضوع ہم نے رکھا کہ جو خواتین ہیں ان کے مسائل پاکستانی کانٹیکس میں خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا اور ان کی جدوجہد ہے اور مسائل جو ہیں. تو آپ اس ساری گفتگو کو جو ابھی ہم نے دیکھی انہوں نے کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کیا, تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ فادر جی. اصل میں شاید نہ بات کر سکوں زیادہ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ سسٹر سبین کو بھی کچھ ٹائم کا احساس ہے یا ان کا زیادہ ٹائم ہم نے لے لیا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ سسٹر بات کریں. باتیں تو بہت ہیں کرنے والی, لیکن ناظرین بہت پروگرام طوالت پکڑ چکا ہے. چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم
जो हमारे माशरे में जो एक करीम या इस तरह के दानश्वरों को सामने लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं बात करूं, मैं सिस्टर सबीन से, आपकी इजाज़त से सिस्टर सबीन से ही सबीना से ही कहूँगा कि वो बात आगे बढ़ाएं ताकि हम अपने वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन हम जो है इसको समेटते जाएं। तब मैं कुछ बातें हैं जो मैं अच्छा लास्ट में करूँगा। तो सिस्टर सबीन जी जी आप अपनी बात मैं वक्त आपको देता हूँ अपना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी सिस्टर जी मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इस बात को। जी जी। आपने देखा कि जो पहला राउंड है उसमें हमने हाईलाइट किया है, एक तो जद्दोजहद को आपने अपने तारुफ से भी बताया कि आप काम क्या कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो मसाइल जो हैं वो क्या हैं और जी खवातीन जो हैं और खासतौर पे वर्किंग वीमेन है उनको किस तरह काम करना चाहिए। मेरा ख्याल जो अभी जो है अगर आप एंड पे, क्योंकि हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये हल क्या है। तो आप देखें जी बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं, वो मसाइल के जी सामने जी। डिस्करेज हो जाती हैं, वो आगे तो ये जो जी हमने जिन बातों का जिक्र किया तो हल क्या है, हम्म। अभी हमने हल की तरफ बढ़ना है, तो ये जरा आप बताइएगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं मुख्तसर तौर पे ही बात करूं ताकि दूसरों को भी बात करने का जी मौका जी मिल सके। और वैसे भी जैसे आप कह रहे हैं कि टाइम भी ज्यादा हो गया, तो बहुत सारी जो जी मसाइल हैं उनका तो पता है सबको कि मसाइल क्या है, क्योंकि हम रोज फेस कर रहे हैं। तो जो हल है मैं समझती हूँ कि ये हकीकत जो है वो रोज रोशन की तरह अयां है सब पे, कि अगर माशरे में तेजी से तब्दीली लानी है तो खवातीन को मुतहर्रिक किया जाए, क्योंकि अगर एक औरत को तालीम दिलाएंगे तो एक घराना जो है वो तालीम याफ्ता हो जाएगा। और जैसे कि कायदे आजम हमारा जो बानी पाकिस्तान, उन्होंने अपने 1947 के खिताब में कराची में कहा था कि तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बगैर हम ना सिर्फ अक़वाम आलम से पीछे रह जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारा नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को आगाही और आज़ादी, ये दो चीज़ें, आगाही और आज़ादी दें, क्योंकि गुलाम माओं से आज़ाद नस्ल जन्म नहीं ले सकती। तो ये हमें करना चाहिए। औरत को हमें कॉन्फिडेंस देना होगा, उसे बताना होगा कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक है। और मैं यहाँ पे उन औरतों को भी सलाम करना चाहती हूँ, खास तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि गरीब औरतें और अमीर औरतें, तो मैं समझती हूँ क्योंकि हम उनके साथ सफर करते हैं, वो औरतें जो ग्रास रूट लेवल पे जिनको जरूरत है अपलिफ्ट करने की, तो क्योंकि हम उनके साथ चलते हैं तो मैंने देखा है कि वो हर मुहाज पे और मर्दों के बराबर काम कर रही हैं। भट्टों पे देखें, वो मर्दों के बराबर काम करती हैं। बाज दफा मर्द काम नहीं करता लेकिन औरत 2-3 जगह पे काम कर रही है। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन फैक्ट है कि औरत जो है वो 2-3 घरों में काम कर रही है, और जब उससे पूछें कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है, वो कन्विक्शन है उसकी, वो कहती है कि मैंने अपने बच्चों को तालीम देनी है। मेरे ख्याल में एक हकीकत ये भी है कि एटलीस्ट मैंने मसीही घरानों में देखा है कि वहां पे इतना ज्यादा फर्क औरत बच्चों में और बच्चियों में नहीं किया जाता। वहां बच्चियों को भी तालीम देने पर तवज्जो दी जा रही है। और गरीब खवातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, और वो कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों को तालीम देंगे, और वो हर किस्म के लो स्टेटस जॉब भी करती हैं, बल्कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि उनकी जो बच्चे हैं वो तालीम याफ्ता हो सके, क्योंकि वो इस बात को समझती हैं कि अगर जो है बच्चियों को तालीम देंगे, बच्चों को तालीम देंगे तो ही मुआशरे में तब्दीली आ सकेगी। तो पाकिस्तान में एक मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो मसीही खवातीन है, जैसे कि आपके टॉपिक में था कि मसीही खवातीन को चैलेंजेस कौन से हैं, तो वैसे तो सब खवातीन को ही हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि हम इंटरफेस पे काम करते हैं, तो हम मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बहाई सब खवातीन के साथ काम करते हैं, और हम वो मिलकर उनके मसाइल जो है वो मोर और लेस सेम है। लेकिन
एक लिहाज से, जैसे इसराइली कौम थी वहां पे 2 ग्रोह थे, एक आका थे और एक गुलाम थे। तो गुलाम जो थे वो सारे मिल जाते थे और वो स्ट्रगल करते थे अपने आका से आजादी हासिल करने की, और खुदा के फजल से उन्होंने 40 साल में जो है वो आजादी हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पे जब गरीब और अमीर खवातीन के 2 तबके बन जाते हैं, तो वो गरीब खवातीन की स्ट्रगल जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तो उनको साथ चलना होगा। अगर वो साथ मिलकर स्ट्रगल करेंगी तो फिर जो है वो तब्दीली आएगी। अदरवाइज गरीब खातून को 3 मुहाजों पे लड़ना पड़ेगा। एक तो वो औरत है, दूसरा वो जो मुआशरा है गरीब है, तीसरा वो अकलियती कारकुन अगर होगी, तो वो 3 मुहाजों पे उसके लिए लड़ना मुश्किल होगा। तो इसके लिए मिलकर चलना जो है वो जरूरी है। तो औरतों को बताना होगा, उनके साथ मिलकर बाहर निकलना होगा, ताकि वो अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें, वो अपना वोट का हक दे सकें, उनको डिग्निटी मिल सके। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं उनके तो आईडी कार्ड ही नहीं बने हुए, वो ना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती हैं, ना वो बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, ना वो अपना ट्रेन या बस का टिकट खरीद सकती हैं। तो ये वाली जो अवेयरनेस है ये देनी बहुत बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूरी है कि उनको पॉलिटिकल लीडरशिप में हिस्सा देने के लिए तैयार किया जाए, उनको पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा देने के लिए तैयार किया जाए, उनको जो है वो हुनर दिया जाए। और खास तौर पे मैं चाहूंगी कि वो जो यस्सु का रवैया औरतों की तरफ था, यस्सु का जो रवैया औरतों की तरफ से था, वो रवैया अगर हम औरतों की तरफ सब इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में मुआशरे में बहुत तेजी से तब्दीली लाई जा सकती है। जी जी सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़ा मुख्तसर तौर पे बयान किया कि जो हल जो है इन मुश्किलात का क्या है, और आपने बहुत जोर दिया ख़वातीन को मुतहर्रिक करने का, और ख़ास तौर पे उनको आगाही और आज़ादी देने का, और तालीम रोशनी आएगी और वो इंसान जो है वो आगे बढ़ेंगे। कैथरीन सपना, सेम क्वेश्चन है आपके लिए भी। जैसे सिस्टर जी भी बता रही थी, हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो आपका तजुर्बा है एज अ वर्किंग वूमेन, जो आपकी स्ट्रगल है और जो आपका मुशाहदा है, जो आपने देखा है, तो उसकी बना पर आप क्या कुछ चंद हल जो है वो पेश करेंगी ताकि खवातीन जो हैं वो डिस्करेज ना हों बल्कि अपनी जद्दोजहद को जारी रखें? जी कैथरीन। सबसे पहले तो मैं सिस्टर जी को अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया बड़े रेफरेंस के साथ, और क्योंकि वो स्कॉलर भी हैं, बड़ी डिटेल में बात करती हैं। सेकंड जो मुझे लगता है वो सबसे पहले हमें औरत की सोच को बदलना होगा। आगाही बहुत ज़रूरी है सोच की तब्दीली के लिए, और जब तक सोच नहीं बदलेगी, हमारा मुआशरा कभी भी नहीं बदल सकता। और उस सोच को बदलने के लिए मैं भी यही कहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया किए जाने चाहिए। अ, जैसे कि सीटीएस ने एक छोटी-सी काविश की है कि लड़कियों की एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा फ़ोकस जो है वो लड़कियाँ ही हैं, ताकि हम मुआशरे को अच्छी माएँ दे सकें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो हमारा फ़ोकस ख़वातीन इसी वजह से है कि जब तक वो एजुकेट नहीं होंगी, हमारे मुआशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। तो पहले भी बड़ी डिटेल में ख़वातीन के स्ट्रगल्स पे और ख़वातीन की जद्दोजहद पे बात हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ़ औरत मार्च काफ़ी नहीं है। औरत मार्च फिर वही बात आ गई कि जो नीचे का तबका है, जो ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि आज आलमी दिन है। बहुत थोड़े लोग हैं जहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही है, या वहाँ पे कोई एक्टिविटी छोटी-मोटी रख दें तो पता चल जाता है कि आज ख़वातीन का दिन है। या फिर हमारे मीडिया ने काफ़ी इसको हाइलाइट करना शुरू कर दिया है, हमारे टेलीविज़न पर एडवर्टाइज़मेंट्स आती हैं कि आज ख़वातीन का दिन है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हकूक जो हैं, हर एक इंसान जो पैदा होता है वो अपने साथ अपने हुकूक लेके आता है। उसके बुनियादी हक जो होते हैं वो उसके साथ होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसका बुनियादी हक है।
اس کے بعد اس کی تعلیم ہے, اس کی تربیت ہے, جو ماں باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے, ہیلتھ ہے, اسٹیٹ کی کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور معاشرے کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے حقوق کی اپنے حقوق آدمیوں سے کیوں مانگ رہے ہیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں. ہم اپنے حقوق کی جنگ اس طرح سے لڑ سکتے ہیں کہ اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کریں. مرد کون ہوتا ہے کہ ہمیں حق نہ دے؟ اگر ایک ماں ہے, سسٹر جی نے یہاں پر بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے صرف عورت کے پاس ہے, صرف عورت جو ہے وہ انسان کو جنم دیتی ہے, اور وہ انسان کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. ماں کی گود جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو عورت کو ایک آدمی کو آدمی کون بناتا ہے؟ عورت بناتی ہے. اس کو اس کا دماغ کون خراب کرتا ہے؟ عورت کرتی ہے. سوری اگر میری بہنوں کو برا لگے یا جو بھی سن رہے ہیں ان کو برا لگے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. جب ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی فیملیز میں دیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں میں فرق کر رہی ہوتی ہے. باپ تو کہیں دوسری جگہ پہ ہوتا ہے, پہلے سب سے ماں کر رہی ہوتی ہے. ڈسکریمنیشن جو لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ جا کے معاشرے میں ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہم ایکول سورسز ان کو نہیں دیتے, اگر ہم ایکول سٹیٹس بچوں کو گھر میں اپنی فیملی میں نہیں دیتے, تو وہ تو پوری زندگی پھر ہمارے ساتھ چلتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آدمی کو آدمی بنانے والی عورت ہے, کیونکہ ہم انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں. ہم گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو 2 سال کا بھائی بھی ہوگا نا, 3 سال کا, 4 سال کا, ہم اس کو انگلی لگا کے باہر نکلتے ہیں. کیوں؟ ہمیں کیوں انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ میں کانفیڈنس نہیں پیدا کرتے؟ ہماری خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں, مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, اور ہمارے میں اتنی جرت اور اتنی ہمت ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکیں. اور میں صرف اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں حقوق مانگنے سے کبھی بھی نہیں ملیں گے. جتنے مرضی عورت مارچ ہو جائیں, جتنے مرضی جو ہے یہ بڑے بڑے اجتماع ہو جائیں, عالمی دن جو ہے خواتین کے جتنے مرضی منا لیں ہم, لیکن ہمارے حقوق جب تک ہم اپنے آپ میں اپنے گھروں میں عورتوں کے اندر جب تبدیلی نہیں آئے گی, ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا. کیتھرین سپنا, بہت شکریہ. آپ نے بڑے واضح انداز میں اور بڑے اچھے مؤثر طریقے سے, جامع طریقے سے آپ نے بتایا, اور خاص طور پہ آپ نے زور دیا کہ جو تبدیلی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اور خاص طور پہ کئی بار کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہی خواتین کا استحصال کرتی ہیں. بہت دفعہ یہ بھی کہا گیا, کیونکہ جب ڈسکریمنیشن آ جائے گی, وہ خود کریں گی, تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں بگاڑ آئے گا. بالکل. جب بانو, دیکھیں, میں آپ کی طرف بھی بڑھوں گا. جی کریں بات. جی سوری. جب ہمارے جب لڑکے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ باہر گلی میں محلے میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کے گھر آ جاتے ہیں, تو ماں تو اس کے اوپر پردے ڈال رہی ہوتی ہے. اور اگر وہی ماں اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اس کو کہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو اس طرح کی حرکت کرے, تو میرے خیال میں ہم بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, تبھی ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے معاشرے میں چینج آ سکتا ہے, ان کی نیچر بدل سکتے ہیں ہم. بہت شکریہ. فادر جی, میں ایک بات کرنا چاہوں گا. فادر جی, سوری فار دیٹ. سسٹر سبینہ, میں دیکھ رہا ہوں, اگر آپ جانا چاہ رہی ہیں پلیز ایک کلوزنگ ایک کچھ کہہ کے آپ پھر اجازت ہم چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہاں, میں کلوزنگ میں نا صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک تو بائبل مقدس میں سے جن کے پاس نہیں بھی ہے وہ لے کے پڑھیں امثال 31 پرفیکٹ وومن. اس میں پرفیکٹ وومن کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے, میں کہتی ہوں کہ دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں وہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. امثال 31 باب, اس میں پرفیکٹ وومن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں, اور کوئی بھی دنیا کی عورت جو ہے
अगर वो मुआशरे में एक बहुत खूबसूरत कोई चेंज लाना चाहती है या एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देना चाहती है, तो वो वाली वो पढ़े। अब मैं यहाँ पे वो पूरा पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि बाकियों का टाइम हो जाएगा, अदरवाइज वो इस काबिल है कि उसे 1000 बार पढ़ा जाए, और वो हर औरत के लिए है कि उसमें बताया गया है कि एक मुकम्मल औरत जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, और उसमें हर चीज का जो है वो अहाता किया गया, यानी कि वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है, अपने खामिद का भी, अपने शहर का भी, अपने जो है वो गुलामों का भी। तो दूसरा मैंने पहले कहा था कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह का जो रवैया खवातीन की तरफ था, क्योंकि उस वक्त जो था वो भी डिस्क्रिमिनेशन थी जूस में, मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ फिरकों में। तो यीशु मसीह ने जब हैकल में लूक 4 बाब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप जो यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा रूह खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। और उन कुचले हुओं में एक तबका खवातीन का भी था। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इल्हाम है, जिसके जरिए हम अपने मुआशरे को बहुत अच्छी एक सोच भी दे सकते हैं और एक खुशगवार तब्दीली भी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। मैं थोड़ा सा फादर जी माजरत के साथ थोड़ी बात करूंगा इससे पहले कि हम कुशिया बानों को दावत दें कि वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं कुछ कहना ये चाह रहा था कि नाजरीन, आज का टॉपिक जो एक इंतहाई वास्ट टॉपिक था, जो एक नशिस्त में शायद हम ख़त्म उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि जो ख़वातीन हमारे साथ थी उनकी प्रोफाइल जो है इतनी बड़ी थी, इतनी प्रोफाइल थी, और आपको बताना ज़रूरी था कि जो क्रिश्चियन न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है हमेशा से ऐसे टॉपिक की तरफ जाता है जो माशरे की अहम ज़रूरत होता है, ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन या जो भी टॉपिक हो उसके मुताबिक लाता है जो वाकई आपको हल दें, और हमारी कोशिश थी कि हम हल लाते। इसके अलावा जो ख़ुसूसन जो मेरे पास आई हुई थी बहुत सारी लोगों की जो इस वक्त चूँकि कोरोना वायरस का चल रहा है, लोग घरों में बंद हैं, तो बहुत सारे सियासी, गैर सियासी लोग जो इस वक्त फील्ड में खिदमत कर रहे हैं, मेरे पास वीडियो थी उनके पास, उनकी जो वो कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा कहना ये चाह रहा हूँ कि ताकि ये वक्त पे मैं क्लोज कर लूँ, फादर ही एंड में क्लोज कर लेंगे, लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो मसीही लोग हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं, इस अपोजिशन या दूसरों का जो इस वक्त फील्ड में आके लोगों को घर घर आटा या राशन दे रहे हैं, तो बहुत सारे मुखालफत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने नहीं लगाई वीडियो नहीं लगाई कि कोई ये ना समझ बैठे कि इनकी फेवर फलां बंदे के साथ है या फलां के साथ है। इसलिए मैं थोड़ा सा कराची से चंद लफ्ज़ों में ही क्लोज करता हूँ ताकि हमारे जो पैनल के साथ हैं हमें चंद मिनट और दे लें। ठीक है सिस्टर सबीन, प्लीज चंद मिनट हमें दे दे। इस तरह से कराची से जो अभी हमारे साथ गजाला थी, फिर सफ़िया जावेद हैं, और इसी तरह नवीद अमथनी नवीद हैं। और जब भी कराची में किसी को ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने उनके घर में पहुंचाया। इसी तरह मैं जिक्र पंजाब से ज़रूर करूंगा, चाहे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दे कि आपने फलां का नाम क्यों ले लिया, फलां का नाम ले लिया। तो मैं देख रहा था कि जो हमारे सेनेटर हैं कामरान माइकल, उनको काफ़ी उनका इस वक्त खिदमात है जो जा रहे हैं, और लोग सिर्फ महज इसलिए ना मुखालफत करें कि ये जो नून का है या पीटीआई का है या उसको ज़्यादा प्रमोट किया, आप देखो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वो भी जा रहे हैं। उनके लिए भी हमने काफ़ी लोगों का कहा कि वहाँ राशन नहीं, वहाँ राशन नहीं, उन्होंने राशन दिया है। इसी तरह हमारे मिनिस्टर जो हैं पंजाब के जो अगस्टिन साहब हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ना है कि मैंने इधर नून का ले लिया नाम ले लिया तो पीटीआई मेरे साथ नाराज हो जाए।
تو یہ फ़ायदा इसलिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ कि हमें मौका कम मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए मैं उनकी खिदमत को भी सराहूँ। इसी तरह दूसरे बहुत सारे ग्रुप के जो पीपल पार्टी के हैं वो भी सारे इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ वीडियो इसलिए नहीं कर सके कि पहले ही तो हालत काफ़ी हो गई है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी दानश्वर लेडीज़ थी जो उन्होंने बड़ी जामिया बात भी की, उनके पास लास्ट था। तो नाजरीन आप ये ख्याल ज़रूर करें, आप मुखालफत बराए मुखालफत या तनकीद बराए तनकीद ना करें कि जी फलां तो ये है तो फलां ये है कि इसका नाम लिया जा रहा है। आपको आप सबका जो आपकी ज़रूरत है पूरी कर रहे हैं, कोशिश अपनी जान जोखों में डाल के आपका काम कर रहे हैं। यहाँ सेंट्री वर्कर्स भी हैं, उनको भी हम सलूट करते हैं, दूसरों को भी, सबको भी। एक यहाँ मैं एक और क्लियर करता जाऊँ माफ़ी के साथ भी कि मेरे साथ बहस हो रही थी कि जी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो एक लफ्ज़ किया है। मेरा ख्याल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि हम जो है वो ईसाई लफ्ज़ ना यूज़ करें। मेरी बहन मसीही यूज़ करें। मेरे साथ मेरे बहन मसीहियत कहते हैं, मसीहियत। जी मेरे साथ बानो बहन है, क्योंकि ये में भी ईसाई लफ्ज़ यूज़ करती हैं, हमारी बहन है। तो जो है वो प्लीज़, क्योंकि मुझे बाद में बड़ा फेस करना पड़ता है जब लोग मेरे साथ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी आपने दुरुस्त नहीं कराया लफ्ज़, या दुरुस्त कोई ऐसा मसला नहीं है अगर हम मसीही या ईसाई का लफ्ज़ करते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन वाला तो नहीं लफ्ज़। लेकिन प्लीज़ बानो को सिया साहबा फिर आप ज़रूर जो है वो अगर लफ्ज़ मसीही लफ्ज़ नहीं आता तो क्रिश्चियन ज़रूर इजीली है। हम हाँ, यूरोप में क्योंकि रहते हमारे हैं। जो मुसलमान बहन भाई है ना वो ईसा हजरत ईसा कहते हैं ना, तो वो उस हवाले से ईसाई कह देते हैं। हाँ, और क्रिश्चियन भाई जो हैं, क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो हम यसु मसीह कहते हैं, तो उस हवाले से मसीह तो तो लेकिन वो प्रिफर करते हैं कि मसीही इस्तेमाल इधर किया। इस तरफ लफ्जों का नहीं। मैंने फिर बहन मैं आप बानो आपसे माजरत के साथ अगर मैंने रिपीट किया है, क्योंकि मुझे फेस बड़ा करना पड़ता है लोगों के कि यार ये क्या, तो इसलिए मैंने कुछ इसका वजाहत किया है। टाइम तो मैंने भी काफ़ी ले लिया है, लेकिन बस कुछ कहना चाह रहा था, क्योंकि वाइंड अप फिर इन्होंने करना था फादर मानुएल नज़ीर मानी। तो बानो कुसिया साहबा को सॉरी मकासा बानो अक्सर मैं उनका नाम वो इसीलिए उनको मैं बानो कहता होता हूँ कि उसमें एक प्यार और एक अपनाइयत है। तो आप कुछ कहते हैं तो अगर इजाज़त देंगे तो हम इसको इन्हीं के साथ हम शुक्रिया करते हुए वाइंड अप कर लेंगे। तो फादर जी वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन हम कुछ मकसा बानो जो हैं वो अपने अल्फाज के साथ इसको वाइंड अप करें, ताकि हम शुरका के कम से कम हम वाइंड अप कर लें। जी बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत शुक्रिया क्वेश्चन के लिए। मैं लफ्ज़ मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं बिल्कुल सही बहन ने फरमाया कि मैं लफ्ज़ ईसाइयत को हज़रत ईसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा मसीह बहन भाई बात करती होती हूँ। अच्छा आपने करेक्शन भी करवाई, अगर बोलते हुए ये ऐसा लफ्ज़ हो गया मेरे लिए, तो मैंने कभी इसमें तफरीक नहीं की है अपने मसीह बहन भाइयों के साथ। और आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे तो प्लीज। जी मुकद्दस बानो, मैं सिर्फ सिस्टर सबीना से कहूंगा कि सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ हो रहे हैं और फिर हम अभी प्रोग्राम को बस खत्म करना चाह रहे हैं। मुकद्दस बानो, जैसा कि सिस्टर सबीना और कैथरीन सपना ने भी अमली चीजें बताई, उन्होंने हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने शुरू में बात की जो खवातीन की जदोजहद है उसके हवाले से और मसाइल का भी जिक्र किया, तो बहुत जरूरी होता है कि उनके हल जो है उसकी तरफ जाया जाए। सिस्टर जी ने भी कुछ हल पेश किए कि खवातीन किस तरह जदोजहद को जारी रख सकती हैं और घर से, और खास पे एजुकेशन पे जोर दिया। कैथरीन ने कहा कि उनको वो जो खवातीन को सोच अपनी भी बदलने की जरूरत है, उन्होंने बहुत जोर दिया घर में
तफरीक ना करने की बच्चों के दरमियान। तो आप भी कुछ जो अपने एक्सपीरियंस की बुना पर जो कुछ चंद मशवरा देना चाहती हैं, तो फिर उसके साथ हम इस अपनी गुफ्तगू को जी कंक्लूड करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर से शुक्रिया। जो बातें ये सब बातें मैं पहले से कर चुकी हूँ कि हम सिर्फ अपने जो डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम वन साइडेड होके कि हम खवातीन और हमारे हकूक की उस तरीके से निशानदही नहीं की जा रही। उसमें बेशक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का रोल तो है, लेकिन हमारी खवातीन की अपनी कमजोरियां भी हैं कि हम अपने हकूक को खुद भी समझ सकते हैं। मैंने पहले कहा कि ये हमारा एक हक है, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी खुराक, अच्छी सेहत, ये हमारे पैदाइशी हकूक हैं जो रियासत के ऊपर फर्ज है कि वो हमें प्रोवाइड करे। लेकिन उसके साथ-साथ जैसे मैंने बोला था कि हमें महत तलहत की जब बात करते हैं कि गोद से लेके कब्र तक, तो वो गोद क्या है? वो औरत है। वो गोद कौन प्रोवाइड करती है? वो औरत प्रोवाइड करती है। तो हमने सारी ज़िम्मेदारी मर्द माशरे पे नहीं डालनी है, हमने जो अपनी अपनी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं औरतों की, वो हमने खुद समझनी है। अ, उसमें किरदार अदा करना है। एक माँ हो सकता है वो जो माएँ हैं जिनकी हम मिसाल यहाँ पे दे रहे हैं, वो उनके साथ भी इंसाफ ना किया गया हो, तो उनका कसूर नहीं है हमारा। हम जिस माशरे में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में हम रहे हैं, हम उसके वो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर इतना वो उसका ज़ंग आया हुआ, तो वो ज़ंग एकदम से हथौड़ा मारने से नहीं उतरेगा। इसको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करके उस ज़ंग को उतारना है, ताकि वो जो औरत की साख है, जो औरत की एक अल्लाह ताला ने उसका वजूद बनाया है, वो ज़ख्मी ना हो। हम उसको नंगा ना करें, इतना ज़ंग उतारने की कोशिश ना करें कि एक औरत को नंगा कर दिया जाए और उसका ऐसा पिक्चराइज़ कर दिया जाए कि जी औरत तो बेहयाई की मिसाल कायम कर दी है। अभी हमने प्रोस्टिट्यूट्स की बात की थी, औरतें हैं, वो प्रोस्टिट्यूट बनी हैं, तो उसको बनाने वाला हमारा मुआशरा है। वो क्यों बनी है प्रोस्टिट्यूट्स? उनके हकूक के लिए कोई बात नहीं करता। वो हम समझते हैं कि कोई गाली हम दे रहे हैं। अगर वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं, मुझे बोलना पड़ेगा कि वो धंधा कर रही हैं, तो उसको धंधा करवाने वाला हमारी रियासत है। हमें उन औरतों के लिए भी आवाज़ बनना है। वो जो औरतें अपनी जिस्म फरोशी कर रही हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं जिस्म बेच रही है, वो अपने घर वालों की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए जिस्म फरोशी कर रही हैं। वो अपनी औलाद को, कहीं ऐसी आपको माएँ मिलेंगी जो अपना जिस्म बेच रही हैं, अपनी औलाद को एक अच्छी खुराक देने के लिए। तालीम तो बहुत दूर की बात है। उन औरतों के अगर आप कभी ग्रास रूट लेवल पे जाएँ, हम एलीट क्लास की हमेशा जब भी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एलीट क्लास बैठी होती है कि एलीट क्लास यूनिवर्सिटी में पहुँच गई, एलीट क्लास पढ़ने के लिए बाहर ममालिक में चली गई, एलीट क्लास अपर हाई स्कूल में पढ़ रही है। आप क्यों एलीट क्लास औरतों की हम मिसालें देते हैं? हम अपनी ग्रास रूट लेवल पे उन औरतों के नाम लेकर आएँ ऊपर, उन औरतों की कहानियाँ लेकर आएँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जेल की बात करूँगी। हमारी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, निगत मीर साहिबा एमएनए रही हैं, नून लीग की थी, ताकि हमारी सियासी मुखालफत रही है। लेकिन मैं इस औरत की अज़मत को सलाम पेश करती हूँ कि एक छोटे से मोहल्ले से उठ के ग्रेजुएशन करने के बाद किस दौर से वो गुज़री वो औरत, कितनी उसने बदनामी अपने सर पे ली, कितनी उसने हिम्मत नहीं हारी। हम ऐसी औरतों को मिसाल बना के सामने लेकर आएँ। एक छोटे से मोहल्ले से उतर के वो ईवान में जाके बैठ गई, वो मिनिस्टर बनी, वो कहाँ-कहाँ तक उसने काम नहीं किया, गली मोहल्लों में गई, क्या-क्या उसके ऊपर तोहमतें लगी। औरतों को कुछ हासिल करने के लिए कुछ अपने ऊपर एक खोल चढ़ा के अपने आप को वो मजबूती का खोल चढ़ाए। अपने आप को, अपने किरदार को इतना मजबूत करे कि गंदी निगाहें, गंदे जुमले, वो अपने दिमाग को इतना मजबूत कर ले कि जब उसने घर से निकल के अपने हकूक की जंग करनी है, तो उसको अपने करैक्टर ब्लेमिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसको गंदी नज़रों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसे गंदे अल्फाज़ भी सुनने पड़ेंगे, अपने ऊपर तोहमतें भी लेनी पड़ेंगी। कुछ कुर्बानियाँ माँगती है और हमने वो कुर्बानियाँ देनी है। हाँ, किसी को इजाज़त ना दें कि आप वो निगल ले। अपने किरदार को इतना मजबूत कर ले और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करे कि जब उसने माशरे में निकल कर अपने हकूक की जंग करनी है, तो इन सब चीज़ों को भी फेस करना है। उसको थाली में सजा के कोई चीज़ नहीं दे देगा कि भी बीबी आओ, तुम्हारे लिए हमने प्लेट सजा ली है, तुम यहाँ से अपनी तालीम उठाओ, यहाँ से सेहत उठाओ। इन सबको खाने के लिए उसको अपना किरदार को, अपने आप को बहुत मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया। जी, जी, मुकद्दस बानो बहुत शुक्रिया। और हम अपने नाज़रीन को जो हमें
लाइव सोशल मीडिया पे देख रहे थे और देख रहे हैं। हम उनको बताना चाहेंगे कि ये जो न्यू कास्टल क्रिश्चियन नेटवर्क है उसकी जानिब से आज की ये गुफ्तगू का आगाज किया गया, जिसमें मौजू जो है वो पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार और जदोजहद और मसाइल ये मौजू था। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे जिन्होंने इस मौजू पे जामे गुफ्तगू की अपने तजुर्बात की बना पे, हम उनके मशकूर हैं। उनमें गजाला शफीक साहबा थी कराची से, मुकद्दसा बानो है मैनचेस्टर से हमारे साथ, सिस्टर सबीना रिफत जो है लाहौर से, और शाजिया नवीद फिनलैंड से, और कैथरीन सपना लाहौर से, और सलीम इकबाल वो भी हमारे साथ लाहौर से शामिल हुए। मैं सैमसन जवेद साहब की जानब से और अपनी तरफ से आप सबका मशकूर हूँ, तमाम पैनलिस्ट का, कि आपने अपना वक्त दिया और आपने अपने मुशाहदात की बना पर बहुत अच्छे तरीके से जो मौजू है आज का, जो बड़ा अहम मौजू है, उसके साथ इंसाफ किया। और मुझे यकीन है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यकीनन जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो यकीनन मुस्तफीद हुए होंगे, और बाद में भी जब हम कुछ नेट प्रॉब्लम है कुछ इस वजह से, तो मैं उनकी जगह रोल लेते हुए आप सबको वो ही आखिरी डायलॉग जो हम बोलते हैं कि आप अपनी अब टेक केयर, अपनी भी हिफाजत करें, एहतियात करें दूसरों के लिए भी। और वो मर्द हजरात जब कोई खवातीन की पोस्ट अगर ऐसी लग जाती है तो ऐसे कमेंट्स देना शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है ये, प्लीज ग्रेस करें और उनका एहतराम करें। और जो हम इतना खूबसूरत मैसेज सुना और इतनी खूबसूरत बातें सुनी, इतनी आलम थी हमारे साथ दानश्वर खवातीन, तो प्लीज टेक केयर। फादर जी अभी मेरा ख्याल है आ जी गए हैं, तो मैं आ गया हूँ। कनेक्शन को खराब हुआ था। जी जी जी, मैंने आपकी जगह इजाजत ले ली है, तो मैं सबसे कहूँगा कि आइंदा भी हमारे साथ जी जुड़े रहिएगा। आपके गो के आप तमाम खवातीन के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन चूंकि हमारा कास्ट कम्युनिटी है, कंट्री है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो प्लीज वक्त निकाल लिया करें। वो डियाना ने एक डायलॉग बोला था, शहजादी क्या लगे तो वो कह रही थी, मैं हैरान हूं कि लोगों के पास वक्त नहीं, हमें वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा अगर हम वेल विशर हैं, हम चाहते हैं तब्दीली। गो मसरूफियात और जैसी हैं। तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हुए खुदाए पैमान, अल्लाह निगहबान, खुदा आपका सबका खुदा हामी और हाफिज। नासिर हो। खुदा बाय बाय। हाफिज। जी हाफिज। ओके। जी।